the benefit under the GST law, and which are those benefits we will subsequently cover. Please note that apart from export, that is physical export of goods as well as services which are from India, additionally the benefit of export is also given to supplies to SEZ. That is, they are also entitled to claim the benefit of zero rating. Further, there is also a scenario called as deemed export under section 147, which is the benefit available to EOU. We will try to say that if the time permits, we'll try to cover it, but cover it up. Otherwise, I think we will keep it for the day. When we talk about, friends, the export of goods and services from any country, the basic principle is always that you should export goods and services and not the taxes. And that's the reason the benefit which is given under the GST law is practically going back to this principle that we should export goods and services and not taxes. And how that is achieved practical, that we are going to discuss today. Now, why any country will typically promote export, why they will try to give some benefit from GST law under the exports scenario. The basic reason, all of you are aware, that the country will be gaining the convertible foreign exchange. And that's the reason, whether it is the export of goods or whether it is export of services, you'll be able to understand the government is always emphasizing on receipt of convertible foreign exchange. If you don't get the convertible foreign exchange within India for those export of services or even for export of goods, then you will not be in a position to get the benefit from government of India as far as GST is concerned. And that is what I think is a fundamental line or fundamental point which we need to keep in mind. When we talk about export and zero rated, practically, when we talk about exempted supply and zero rated supply, please note, in both the cases, आप देखेंगे कि आउटपुट साइड पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बराबर है. सो जब आप एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जब आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. तो प्रैक्टिकली एग्जम्प्टेड सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई एग्जैक्टली सेम दिखता है, बराबर है. लेकिन हम अंडरस्टैंड करते हैं पहले बाय ऑफ अ सिंपल एग्जांपल कि ये दोनों सेम है क्या. आपके सामने मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं. 3 लोग हैं, मिस्टर राधे, मिस्टर राहुल एंड मिस्टर राज. तो मैं कहूंगा नाम तो सुना ही होगा, करेक्ट. ये 3 लोगों के 3 अलग अलग बिजनेस है. एक जन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, बराबर है. सो वो पेन बेचता है, समझो इंडिया में पेन के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है. एक जन जो मिस्टर राहुल है वो पेंसिल बेचता है, बराबर है. अज्यूम करते हैं कि पेंसिल एग्जम्प्टेड है. एंड मिस्टर राज जो है वो पूरा उसका टर्नओवर जो है वो पूरा 100% वो एक्सपोर्ट करता है, वो आउटसाइड कंट्री, इंडिया में कुछ बेचता ही नहीं. तो ही इज हैविंग अ जीरो रेटेड सप्लाई, बराबर है. तो अभी ये एग्जांपल में हमने उसके रॉ मटेरियल का प्राइस लिया है 100 रुपीज, बराबर है. तो जो जब परचेस करेगा तो लगभग हर जगह वो 18 रुपए का जीएसटी पे कर रहा है. तीनों जगह देखो आप, 100 रुपए का बेसिक प्राइस से 18 रुपए उन्होंने जीएसटी पे किया है. तो टोटल उनका जो प्राइस आया है वो 118 है, तीनों का सेम. सेलिंग प्राइस जो है उनका, बराबर है, सेल प्राइस कितना है, 200 रुपए है मिस्टर राधे का, राहुल का भी 200 और राज का भी 200 रुपए है. लेकिन जीएसटी के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे, जब टैक्सेबल प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो तो आपको 18 रुपीज जीएसटी पे करना है, बराबर है. तो आपका टैक्सेबल प्रोडक्ट है तो इसलिए जीएसटी जब 200 रुपए पे आप कैलकुलेट करोगे इट वुड बी 36 रुपीज. जब कोई एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट बेच रहा है, बराबर है, प्रोडक्ट इज एग्जम्प्टेड, देयर इज नो जीएसटी ऑन दैट, तो बताइए जीएसटी एप्लीकेबल होगा क्या? Will it be applicable exempted supply पे? Whether GST would be applicable? Answer is no, Vishnu. You are right. Arvind is also right. Kriti, Rohit, Kamal, Jinal, all of you are right. No GST is applicable. तो आपका सेलिंग प्राइस कितना रहा? 200 रुपए. अभी जीरो रेटेड के केस में देखते हैं, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, करेक्ट वैष्णवी मनाली, यू आर राइट. अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो. नेक्स्ट एग्जांपल, अभी आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो, यू आर एक्सपोर्टिंग गुड्स वर्थ 200 रुपीज. तो अभी आपको जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हो क्या एग्जांपल में? आंसर इज नो. तो आपका जीएसटी अमाउंट कितना आएगा? इट वुड बी 0, यानी नील ओनली. तो यानी कि अगर आप देखोगे एग्जम्प्टेड और जीरो रेटेड में जो टोटल प्राइस है, ये एग्जांपल में एग्जम्प्टेड और जीरो रेटेड में टोटल प्राइस है, दोनों के केस में कितना है वो प्राइस? 200 रुपया, करेक्ट. तो आप बोलोगे यार एग्जम्प्टेड में भी 200 में मैं नील रेटेड या एग्जम्प्टेड रहेगा तो भी 200 में बेच रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो भी 200 में बेच रहा हूँ. तो डिफरेंस किधर है एग्जम्प्टेड और जीरो रेटेड में? तो डिफरेंस फ्रेंड कहां पर है? तो जो पर्सन एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा है उसको जो परचेस के वक्त उसने जो जीएसटी 18 रुपीज पे किया था, बराबर है, जो उसने 18 रुपीज जो परचेस के वक्त पे किया था उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज इज एग्जाम, उसका जो सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई है.
लेकिन अगर उसका जीरो रेटेड सप्लाई है तो जो उसने परचेस के वक्त 18 रुपीज पे किया था, ही कैन क्लेम दैट एज अ रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उसको गवर्नमेंट से 18 रुपया रिफंड मिल जाएगा। लेकिन एग्जम्प्टेड वाले केस में आपको परचेस के वक्त आपने जो जीएसटी पे किया था उसका रिफंड नहीं मिलेगा, बराबर है। तो आप मुझे, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो, तो आप बताइए मुझे प्रैक्टिकली एग्जम्प्टेड वाले केस में और जीरो रेटेड केस में एंड इवन टैक्सेबल वाले केस में कि वो पर्सन का प्रॉफिट कितना हुआ। 100 रुपए का चीज 200 में बेचा उन्होंने, बराबर है, कहीं पर जीएसटी लगाया नहीं लगाया तो वो कैलकुलेट करके कोई बता सकता है। वो मिस्टर राधे का, मिस्टर राहुल का, मिस्टर राज का प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, कैन एनीबडी शेयर? सिंपल एग्जांपल है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अगर राधे एंड राज इज 100, आप ABC करके या राधे या ऐसा लिखिए 100 100 100 या जो भी रहेगा आपका आंसर। तो मयूर ने कहा है 100 रुपीज, लेकिन मयूर किसके लिए? अभय ने स्पेसिफिकली बोला है राधे और राज के लिए 100, और राहुल के लिए कितना है अभय? तो प्रतीक कह रहे कि 100, 82 एंड 118। हंड्रेड 82 118। तो अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली, करेक्ट, एग्जम्प्टेड के केस में आपका प्रॉफिट कम आ रहा है, बराबर है। क्यों आ रहा है? बिकॉज आपका जो जीएसटी जो आपने परचेस साइड पे जो पे किया था मिस्टर राहुल ने, वो उसको क्रेडिट मिला है क्या? उसका नहीं, उसको रिफंड मिला है क्या? नहीं, तो वो उसका कॉस्ट बन गया है, उसका कॉस्ट 18 रुपए से ज्यादा हो गया, बराबर है मिस्टर राहुल का। तो जब 18 रुपए से उसका कॉस्ट ज्यादा हो गया, उसका प्रॉफिट उससे कम हो गया, यानी कि 118 रुपए में परचेस किया, 200 में बिका, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 82 रुपीज। लेकिन यहां पर देखिए मिस्टर राज का, बराबर है, उसने परचेस कितने में किया? 118 में, बेचा 200 में, तो मिस्टर राज का भी प्रॉफिट 82 ही आना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 18 रुपए हम आपको देंगे वापस। तो 82 प्लस 18 रुपीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको वापस दिया मिस्टर राज को, तो इफेक्टिवली अगर आप देखेंगे प्रॉफिट जो है मिस्टर राज का 100 होगा, बराबर है। तो आप प्रैक्टिकल देखेंगे मिस्टर राधे और राज का प्रॉफिट दोनों का 100 है, जबकि राहुल का 82 है, यानी 18 रुपए कम है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस 18 रुपीज इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉस। तो यहां पर और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप देखिएगा, राधे ने जो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहा है, बराबर है, जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, उसने 236 में गुड्स बेचे 236 में, तब जाके उसका प्रॉफिट आया है, बराबर है, तब जाके उसका प्रॉफिट आया है। लेकिन मिस्टर राज का आप देखो 200 में बेच के भी उसने प्रॉफिट कमाया है, बराबर है, एज कंपेयर टू राहुल ही इज गेटिंग 18 मोर। तो बी अ बिट केयरफुल व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एग्जम्प्टेड सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई, बिकॉज एग्जम्प्टेड सप्लाई में आउटपुट साइड पे दोनों जगह टैक्स नहीं है, लेकिन द डिफरेंस इज ऑन द इनपुट साइड। प्रैक्टिकली आपको परचेस साइड का बेनिफिट मिलता है, एंड दैट इज व्हाट सेपरेट्स द एग्जम्प्टेड सप्लाई फ्रॉम जीरो रेटेड सप्लाई। So I hope this example is now very much clear to all of you. Now let me complicate this example to a bit. Let us complicate this example to a bit. Assume that you are exporting exempted goods. If you are exporting exempted goods, then whether exempted goods अगर आपने एक्सपोर्ट किए तो आपको जीरो रेटिंग का बेनिफिट मिलेगा क्या? बिकॉज आप एग्जम्प्टेड गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो। जो पेंसिल है, हमने एग्जांपल में कहा पेन टैक्सेबल है, पेंसिल एग्जम्प्टेड है, तो आपने पेंसिल अगर एक्सपोर्ट कर दिया तो आपको बेनिफिट मिलेगा क्या एग्जम्प्टेड का? प्रोडक्ट को अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो जीरो रेटिंग का? मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग यस एंड द आंसर इज यस। मयूरी श्रवणी, करेक्ट आंसर इज यस। कृति, अगर आपने एग्जम्प्टेड गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए तो भी आपको बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट कहता है कि आप कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करो, वो एग्जम्प्टेड हो या टैक्सेबल, हम आपको बेनिफिट देंगे। एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप एग्जम्प्टेड गुड्स भी, वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, एग्जम्प्टेड गुड्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, बराबर है। बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा है कि एग्जम्प्टेड गुड्स आप डोमेस्टिकली सप्लाई करोगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वही चीज अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो परचेस साइड पे जो भी आपने टैक्स पे किया है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ let us proceed further.
जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, जीरो रेटेड सप्लाईज की, we need to understand that the GST legislation has different components. तो एक्ट है, रूल्स है, सर्कुलर्स है, नोटिफिकेशन है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल जो प्रोविजंस है, मैक्सिमम प्रोविजंस अगर आप देखेंगे IGST एक्ट में है एक्सपोर्ट के। तो अगर आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स समझना है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज समझना है, तो आपको सेक्शन 2 सब क्लास 5 एंड सेक्शन 2 सब क्लास 6 देखना पड़ेगा IGST एक्ट का। अगर आपको जीरो रेटेड कंसेप्ट समझना है तो डेफिनेशन में जाएंगे तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 23 एंड सेक्शन में जाएंगे तो सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको देखना है कि भैया मैं इंडिया में हूं और मैं गुड्स सप्लाई कर रहा हूं बाहर, सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं बाहर, तो वो इंटरस्टेट माना जाएगा कि इंट्रास्टेट माना जाएगा, कल हमने देखा। उसके लिए सेक्शन 7(5) सब क्लॉज ए आपको देखना है। सिमिलरली अगर आपको समझना है कि भैया मुझे रिफंड मिलेगा कि नहीं, बिकॉज मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, जीरो रेटेड कर लिया, सब कर लिया, लेकिन मुझे रिफंड मिलेगा कि नहीं, वो अगर देखना है, टाइम लिमिट यानी कि कितने टाइम में मुझे 1 साल के अंदर रिफंड क्लेम फाइल करना है, 2 साल के करना है अंदर, बराबर है। तो वो सबके लिए आपको अगर कोई सेक्शन देखना है तो वो आपको सेक्शन 54 देखना पड़ेगा। डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 147 में स्पेसिफिकली मेंशन किया है। सिमिलरली आपको एक्ट के साथ रूल्स भी देखने पड़ेंगे। रूल्स की हम जब बात करते हैं तो लगभग रूल 89 से लेकर 96B ये इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल रूल्स है विच आर डीलिंग विद एक्सपोर्ट और जीरो रेटेड सप्लाईज। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपोर्ट, बिकॉज जीरो रेटेड सप्लाई ये जो वर्ड है उसमें 2 टाइप के ट्रांजैक्शन कवर होते हैं। एक होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एंड दूसरा होता है सप्लाई टू एन SEZ, बराबर है, SEZ यूनिट एज वेल एज SEZ डेवलपर। यानी कि गवर्नमेंट ने कहा है जीरो रेटेड सप्लाईज में 2 टाइप के सप्लाई आते हैं। एक जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो रहा है, यानी यहाँ पर आपका जो कस्टमर है कंट्री के बाहर बैठा हुआ है, यानी कि गुड्स अगर आप भेज रहे हो तो इंडिया से फ्लाई करके या शिप के थ्रू वो गुड्स बाहर चले जाएंगे। अगर हम सर्विस की बात कर रहे हैं तो टिपिकली द रिसिपिएंट वुड बी आउटसाइड इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई शुड आल्सो बी आउटसाइड इंडिया। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग। जब आप एक्सपोर्ट कह रहे हो तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, लेकिन जीरो रेटेड सप्लाईज में नॉट ओनली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कवर्ड, but also supply to an SEZ developer and supply to an SEZ unit is also covered. That is also we need to keep in mind. Now, first let us understand what is export, because export of goods or services covered है, लेकिन export of goods and services का meaning क्या है? तो export of goods and services का जो meaning है वो अलग अलग दिया गया है। तो जैसा हमने कल देखा जब हम बात कर रहे थे प्लेस ऑफ सप्लाई की, तो गुड्स के लिए अलग प्लेस ऑफ सप्लाई है, सर्विस के लिए अलग प्लेस ऑफ सप्लाई है। टाइम ऑफ सप्लाई की, गुड्स के लिए अलग टाइम ऑफ सप्लाई है, बराबर है, एंड सर्विसेज के लिए अलग टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12 गुड्स के लिए डील करता है, सेक्शन 13 सर्विस के लिए करता है। सिमिलरली जब हम रेट की बात करते हैं तो रेट के लिए भी गुड्स के लिए अलग रेट के नोटिफिकेशन है, सर्विसेज के लिए अलग रेट के नोटिफिकेशन है। तो एग्जैक्टली सिमिलरली जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रोविजन है, अलग सेक्शन आपको देखने पड़ेंगे, एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए आपको अलग सेक्शन देखने पड़ेंगे। तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द टर्म एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। टिपिकली जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से इंडिया के बाहर, बराबर है। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा इंडिया का मीनिंग क्या है, बराबर है, बिकॉज इंडिया से आपको इंडिया के बाहर भेजना है, करेक्ट। तो हम दूसरी कंट्री की बात करते हैं तो हो सकता है UAE आ सकता है, UK आ सकता है, USA आ सकता है, यानी कि यू आर सेंडिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया आउट टू अ कंट्री विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। You are providing services from India to a country which is located outside India. तो यहाँ पर फंडामेंटली एक दो जो क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं कि भैया अगर मेरा ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट हो गया, बराबर है, क्वालिफाई हो गया, इफ इट इज क्वालिफाइंग एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इफ इट इज क्वालिफाइंग एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो मुझे बेनिफिट क्या मिलता है, गवर्नमेंट मुझे क्या बेनिफिट देगा? तो गवर्नमेंट ने पहले कहा है अगर आपका ट्रांजैक्शन क्वालिफाई होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर GST लॉ, देन in case of export you will be entitled to get the benefit of zero rating. Zero rating यानी आपको एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी GST पे नहीं करना है। जैसे अभी हमने थोड़ा टाइम पहले एग्जांपल देखा था, मिस्टर राज जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बराबर है, उनका जीरो रेटेड सप्लाई है, तो वैसे केस में उनका सेलिंग प्राइस 200 रहेगा। आइडियली अगर वही चीज, वही सेम गुड्स अगर मिस्टर राज इंडिया में बेचेंगे तो उनको 36 रुपीज GST पे करना पड़ेगा, बिकॉज 18% हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में अज्यूम किया है, बराबर है। तो जीरो रेट के केस में गवर्नमेंट कहता है कि भैया आप 200 में बेच रहे हो तो 200 में ही बेचो, GST मत लगाओ।
So that is the benefit. You are not expected to apply GST on the output side. Correct? So this is very critical. This is very important benefit which the government is giving to you. यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बराबर है, कि अगर आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई नहीं होगा तो क्या? बिकॉज एक है कि जहां पर आपको एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई हो रहा है तो गवर्नमेंट कह रहा है कि 0 रेटिंग का बेनिफिट है. अगर आपका एक्सपोर्ट क्वालिफाई नहीं हुआ ट्रांजैक्शन तो प्रैक्टिकली आपके ट्रांजैक्शन पे IGST एप्लीकेबल हो जाएगा. तो इवन इफ द पर्सन सर्विस रिसिपिएंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया में बैठ के आपने बिल गेट्स को कोई एडवाइजरी दिया, सो यू आर इन इंडिया, आपने बिल गेट्स को $1000 का कोई एडवाइस दिया, प्रैक्टिकली अगर वो ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई नहीं हुआ, आपको समझो INR में पैसा मिला, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसे नहीं मिले, तो वहां पर वो ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई नहीं होगा. इसका मतलब प्रैक्टिकली आपको IGST वो ट्रांजैक्शन पे करना पड़ेगा. सो एक्सपोर्ट यानी 0 रेटिंग, नो GST पेएबल. लेकिन अगर ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट क्वालिफाई नहीं होगा तो प्रैक्टिकली इट मीन GST पेएबल. बट फ्रेंड्स प्लीज नोट that there can be a fundamental argument which a taxpayer can take, that in case of export, that is when I'm exporting goods or when I'm exporting services, even if I don't receive the consideration in convertible foreign exchange, यानी मैंने एक्सपोर्ट की कोई कंडीशन फुलफिल भी नहीं की, लेकिन अगर गुड्स फिजिकली कंट्री के बाहर चले गए, अगर मैंने सर्विसेज किसी रिसिपिएंट को दी है जो रिसिपिएंट कंट्री के बाहर है, तो प्रैक्टिकली आप ये कंटेंशन ले सकते हो, आर्गुमेंट ले सकते हो कि वो ट्रांजैक्शन पे GST एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता है. और ये ट्रांजैक्शन आप कैसे, ये आर्गुमेंट कंटेंशन कैसे ले सकते हो? यू कैन टेक दिस बिकॉज अंडर आर्टिकल 269 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो स्पेसिफिकली एम्पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू लेवी IGST ऑन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, यहाँ पर एक मुझे लगता है एक फंडामेंटल एनोमली है, यहाँ पर एक फंडामेंटल लैंग्वेज में मैं कहूंगा कि थोड़ा फ्लॉ है, बराबर है. और वो फ्लॉ क्या है? अगर आप लैंग्वेज देखेंगे आर्टिकल 269 का, विच इज एम्पावरिंग गवर्नमेंट टू लेवी IGST प्रैक्टिकली ऑन ऑल इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे देयर इज अ स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन, एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट for the purpose of this clause, supply of goods or services or both in the course of import into the territory shall be deemed to be supply in the course of interstate trade or commerce. यानी अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली इंपोर्ट ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ने बोला है कि इंटरस्टेट करके क्वालिफाई होगा डीमिंग फिक्शन के थ्रू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के बारे में बात ही नहीं की गई उसमें. तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जब मैं गुड्स फिजिकली कंट्री के बाहर भेज रहा हूँ, मुझे पैसा भी फॉरेन करेंसी में नहीं मिला, तो भी आप मुझसे IGST रिकवर नहीं कर सकते हो. क्यों? बिकॉज आर्टिकल 269A जिसके अंदर अपने IGST एक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, बराबर, आर्टिकल 269A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जिसके अंदर आपने IGST एक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, वहां पर उस आर्टिकल में पावर ही नहीं दी गई है. देयर इज नो पावर विच इज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू लेवी IGST और एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन. तो दिस इज आई थिंक समथिंग विच इज मिसिंग, एंड दैट द रीजन आपके ट्रांजैक्शन में अगर बाद में कभी एक्सपोर्ट के कंसिडरेशन नहीं मिलता है, कोई कंडीशन ये हो जाए, वायलेट हो जाती है, इन सच केसेस यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ आर्गुमेंट. प्लीज नोट दैट दिस इज द आर्गुमेंट कंटेंशन, विल हैव टू टेक दिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, पैसा नहीं मिला तो आप बोलो कि ठीक है ये बेसिस में GST नहीं पे करूंगा. दैट इज नॉट दैट इजियर आर्गुमेंट, बराबर है. बिकॉज आपको ये प्रूव करना पड़ेगा हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट तक जाके, शायद आपको कंटेस्ट करके विन करना पड़ेगा ये आर्गुमेंट. एंड दैट द रीजन प्रेफरेबल है कि टिपिकली यू शुड एंश्योर दैट यू आर इन अ पोजीशन टू रिसीव द कंसिडरेशन इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज. एडिशनली प्लीज नोट करिए, ये जो सब क्लॉज है आर्टिकल 269A का सब क्लॉज 5, यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है खुद को एम्पावर किया है, बराबर है, पार्लियामेंट को. द पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी गवर्नमेंट कुछ प्रॉक्सी प्रिंसिपल बना सकती है. यहाँ पर ये भी हमको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान रखना चाहिए, एंड इंटरमीडिएट के वक्त हमें डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट को पावर है टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई. कैन द गवर्नमेंट डायरेक्टली डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई? इन केस ऑफ इंटरमीडिएट क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बोल दिया है प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सप्लायर. नाउ द गवर्नमेंट कैन फॉर्मुलेट सर्टेन प्रिंसिपल्स. Can they directly determine the place of supply is again an important question, which we'll discuss separately when we are going to discuss the next couple of slides. So friends, now let us understand, जैसे हमने कहा कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा GST लॉ के अंदर, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए. तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो टर्म है
ये डिफाइन किया गया है जीएसटी लॉ में, और वो ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। नाउ प्लीज नोट दैट एक्सपोर्ट का जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स में भी आपको शायद मिल सकता है, कस्टम एक्ट में भी मिल सकता है, दूसरे लॉज में भी मिल सकता है, बराबर है। लेकिन वो रिस्पेक्टिव लॉ का डेफिनेशन आपको रिस्पेक्टिव लॉ में पढ़ना पड़ेगा। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया जीएसटी लॉ में एक्सपोर्ट का डेफिनेशन क्या दिया गया है, बराबर है। यू कैन नॉट गो टू अदर लॉ एंड से कि नहीं नहीं वहां पर एक्सपोर्ट क्वालिफाई कर रहा है, इसके लिए जीएसटी लॉ के अंदर भी सेम ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई करके, दैट आर्गुमेंट कैन नॉट बी टेकन, एंड दैट्स द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सो द गवर्नमेंट सेज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, मीन्स फिजिकली आपको गुड्स कंट्री के बाहर भेजने हैं टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, यानी तो गुड्स शुड फिजिकली फ्लाई और मे बी बाय रोड और मे बी बाय शिप, द गुड्स शुड रीच अ डेस्टिनेशन विच इज आउटसाइड इंडिया। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा कि इंडिया का डेफिनेशन क्या है। तो इंडिया का डेफिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी एक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी एक्ट इज बेसिकली इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द टेरिटोरियल वाटर्स बट इट आल्सो इंक्लूड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। आप सबको पता रहेगा टेरिटोरियल वाटर टिपिकली 12 नॉटिकल माइल्स तक आता है, जो हमारा ये रहता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहता है वो नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल तक आता है, और उसके बाद अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। प्लीज नोट करिएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है 200 नॉटिकल माइल्स जो डिजाइन या डिफाइन किया जाता है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के हिसाब से आपको समझना पड़ता है, बिकॉज कुछ कुछ लोकेशन है जैसा श्रीलंका जो अपना कंट्री बाजू में, तो 200 नॉटिकल माइल्स अगर हमने कहा अपने सी शोर से, तो प्रैक्टिकली इवन श्रीलंका विल गेट कवर्ड अंडर द 200 नॉटिकल माइल। तो जहां पर भी कोई कंट्री बीच में आ जाती है तो वहां पर डिस्कस करके उसको अलाइन किया जाता है, वो 200 नॉटिकल माइल्स को आपको रिड्यूस करना पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ये व्हाइट आपको ये ब्लैक जो लाइन दिख रहा है प्रैक्टिकली, तो ये आप कह सकते हो कि 200 नॉटिकल माइल्स है, तो इसके बाहर आपके गुड जाने चाहिए, यानी कि कोई कंट्री, जैसे हमने यूएई का एग्जांपल लिया है, बराबर है, यूके का है, यूएस का है, यानी कोई कंट्री में जाना चाहिए। अब ये गवर्नमेंट ने इंडिया के डेफिनेशन में 200 नॉटिकल माइल्स को क्यों इंक्लूड किया है, बिकॉज आपने पढ़ा रहेगा कि बॉम्बे हाई जहां ऑयल का रिफाइनिंग होता है, रिफाइनरी जो है बॉम्बे हाई रिफाइनरी, वो समंदर में है कुछ नॉटिकल माइल्स के वहां पर। तो लोग कहेंगे कि भैया मैंने इंडिया से बॉम्बे हाई जो मेरे बॉम्बे हाई का जो रिफाइनरी का जो प्लांट है उसको भेजा, तो वो भी एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई होगा। तो वैसा ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिफिनेशन स्पेसिफिकली कहा है कि बियॉन्ड बेसिकली इंडिया, दैट वुड मीन टिपिकली बियॉन्ड बेसिकली विल मीन अ कंट्री विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। और जब भी हम अपने बॉम्बे हाई या कोई प्लेटफॉर्म को या जहाँ रिफाइनिंग वगैरह हो रहा है उसको आप सप्लाई करोगे, सो दैट ट्रांजेक्शन विल नॉट क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी एक्ट। परफेक्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, बराबर है, जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है वो ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विल टिपिकली बी गवर्न बाय कस्टम्स एक्ट। तो जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कंट्री से, बराबर है, तो आप एक्सपोर्ट ऑफ जो गुड्स करोगे रोड से करोगे, आप सी से करोगे या एयर से करोगे, करेक्ट। ये तीन मेथोडोलॉजी आप एक्सपोर्ट करोगे। यहाँ पर टिपिकली जब भी आप सी से या एयर से जब आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है, दैट इज शिपिंग बिल। और ये शिपिंग बिल कौन फाइल करता है? आप, यानी एज ए एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स आपको फाइल करना है। तो जब वो कंटेनर में गुड्स, आपने देखा रहेगा जो भी एक्सपोर्ट होता है टिपिकली कंटेनर्स में होता है, स्टैंडर्डाइज साइज के कंटेनर्स रहते हैं, उसमें एक्सपोर्ट होता है। तो समझो आपने 100 लैपटॉप एक कंटेनर में डाल के आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। नाउ आप शिपिंग बिल फाइल करोगे, उसके बाद वो कंटेनर को चेक किया जाएगा, कस्टम ऑफिसर चेक करेंगे बेस्ड ऑन द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उनका, आरएमएस करके, बेसिस दैट दे विल चेक सर्टन जो कंटेनर्स है, बराबर है, और उसके बाद ही विल पास अ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। यानी यहाँ कस्टम ऑफिसर का एक रोल आ गया, आपने शिपिंग बिल भरा, कस्टम ऑफिसर ने लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास कर दिया। उसके बाद में ये गुड्स कहाँ पर जा रहे हैं? एक शिप पे जा रहे हैं, अज्यूम करते हैं, बराबर है, एक जहाज पे रखे जा रहे हैं। तो जब जहाज पे गुड्स रखे जाते हैं, जो वेसल का मास्टर रहता है, जो कैप्टन रहता है, वो क्या करेगा? वो एक एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट करके डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो लिस्ट बनाता है, भैया मैं ये कंट्री से, इंडिया से जब निकल रहा हूं तो मेरे पास कितने कंटेनर्स है, हो सकता है मैंने 1000 कंटेनर में एक्सपोर्ट लेके जा रहा हूं, तो मैं वो पूरे डिटेल में लिखता हूं, जिसको एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट कहा जाता है, कि ये शिपिंग बिल के हिसाब से इतने मेरे पास कंटेनर्स है जो मैं लेके जा रहा हूँ, करेक्ट। तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफंड देता है अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किए तो, जीएसटी अगर आपने आईजीएसटी उसके ऊपर पे किया है तो।
तो ये क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट कह रहा है कि 3 जगह पर यहाँ पर चेक हो गए गुड्स, कि पहले आपने सेल्फ डिक्लेरेशन या सेल्फ आपने शिपिंग बिल भरा, यानी कि एक्सपोर्टर इज सेइंग कि मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। दूसरा, कस्टम ऑफिसर भी बोल रहा है कि यस द लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इज पास मींस गुड्स आर इन दैट कंटेनर एंड द कंटेनर इज बीइंग एक्सपोर्टेड। एंड तीसरा जो वेसल मास्टर है वो भी बोल रहा है कि ये गुड्स अभी मेरे पास वेसल में आ गए, मैं ये लेके गुड्स जा रहा हूँ। यानी कि तीन पॉइंट के ऊपर आप बोल सकते हैं कि 3 लोकेशन के ऊपर या 3 एस्पेक्ट या 3 लोगों ने बेसिकली इसको बोल दिया है कि एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन करके क्वालिफाई हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है करके। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट या एडिशनल एस्पेक्ट है। आपको रिफंड किससे लेना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और वो कहाँ से मिलेगा आपको? जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे, बिकॉज हम जीएसटी रिफंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एज ए एक्सपोर्टर आपने सिर्फ शिपिंग बिल फाइल कर दिया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी बराबर फाइल करना पड़ेगा। एंड एडिशनली आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भैया जो आपका कंसिडरेशन है, जब आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर दिया या आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर दिया, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कंसिडरेशन आपको मिलना ही चाहिए, बराबर है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आगे हम डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में तो आपको अगर कंसिडरेशन मिला नहीं तो क्वालिफाई होगा ही नहीं आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन। लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के कंडीशन में केस में गवर्नमेंट ने बोला है फिजिकली गुड्स चले गए, लेकिन आपको बोला है कि भैया विद इन सर्टेन टाइम लिमिट जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है, टिपिकली वो टाइम लिमिट 1 ईयर का है। तो आरबीआई के हिसाब से अगर विद इन 1 ईयर अगर आपको कंसिडरेशन मिल गया तो आप बोल सकते हो कि मेरा ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई हो रहा है। तो आप कहोगे कि सर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, बराबर है, वेसल में चले गए, दुबई में मैंने जिसको भेजा था उसको गुड्स भी मिल गए, लेकिन अभी वो दुबई वाला बंदा बोल रहा है भाई मैं पैसा देगा नहीं, मेरे पास पैसा है नहीं, लॉकडाउन लग गया, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम आ गया, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मनी। तो ऐसे केस में क्या? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपको कंसिडरेशन फॉरेन एक्सचेंज में नहीं मिला है, आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए एंड आपने आईजीएसटी का या आपने आईटीसी का रिफंड ले लिया है एंड अगर आपको फॉरेन करेंसी में पैसा नहीं मिला, देन आपको जो भी रिफंड मिला है गवर्नमेंट से वो आपको विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यानी receiving consideration in convertible foreign exchange is an important condition also for goods. This is a very important thing which all of us need to understand. Please note करिएगा, रूल 96B जो है ये 20 मार्च 2020 को इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके पहले कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं था। इवन एक्साइज एरा में भी कोई भी कंडीशन नहीं थी कि भैया आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बाद आपको कंसिडरेशन मिलना ही चाहिए करके, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा कि भैया फिजिकली गुड जा रहे हैं, मेरा कस्टम ऑफिसर चेक कर रहा है, जो वेसल वाला है पर्सन वो भी चेक कर रहा है, तो फ्रॉड का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी सारे फ्रॉड ऐसे पाए गए कि लोगों ने खाली कंटेनर भेज दिए या लोगों ने कचरा एक्सपोर्ट करके भेज दिया, बराबर है। एंड उसके बाद में लोगों ने क्या कर दिया, जब कचरा एक्सपोर्ट कर दिया, पुराने कपड़े एक्सपोर्ट कर दिए, खाली कंटेनर भेज दिया और रिफंड भी क्लेम कर लिया फ्रॉडुलेंटली। तो जब काफी सारे ऐसे केसेस आने लग गए तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो आइडियली पैसा भी आ जाना चाहिए, जैसा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2020 से 96B करके जो रूल है वो इंट्रोड्यूस किया है। कहा है कि भैया अगर आप एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हो तो वहां पर भी आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपको पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो आपको रिफंड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, द मनी विच यू आर रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एज आईजीएसटी रिफंड और आईटीसी रिफंड, बराबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एस्पेक्ट है जो ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपसे आगे थोड़ा कपल ऑफ मिनट्स के बाद डिस्कस करूंगा कि गवर्नमेंट ने अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। अगर आप एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हो तो आप इवन एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स करके आप जीएसटी भी आउटपुट पे पे कर सकते हो, या तो आप इनपुट टैक्स का रिफंड ले सकते हो। तो आप कहोगे यार मैं एक्सपोर्ट अगर ट्रांजेक्शन क्वालिफाई कर रहा हूँ मैं जीएसटी क्यों पे करूंगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। परफेक्ट, तो चलो आप आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने समझा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन पे किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेरी है? एनी क्वेरी यू आर हैविंग विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड ट्रांजैक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो थैंक्स, चलो मुझे लगता है कि क्वेरी नहीं है, लेट्स मूव अहेड। एलयूटी एप्लीकेबल है क्या? एलयूटी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यस एलयूटी एप्लीकेबल है, और कभी कभी लोग एलयूटी अप्लाई नहीं करते हैं, बराबर है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो आपको समझ में आ गया, भैया गुड्स मेरे फिजिकली कंट्री के बाहर चले जाने चाहिए।
अभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मीनिंग क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही इलेबोरेट डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 में। सेक्शन 2 सब क्लॉज 5 में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नेक्स्ट सब क्लॉज में, दैट इज सब क्लॉज 6। तो यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। तो पहली चीज है कि एज ए एक्सपोर्टर you are expected that you need to be in India. सेकंड, आपका जो रिसिपिएंट है बराबर है, ही शुड बी बेसिकली आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में ही अगर आप हो, प्रैक्टिकली अगर आप इंडिया में ही हो, तो वहां पर प्लीज नोट करिएगा आपको बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट नहीं मिलेगा। रेसिपिएंट नीड्स टू बी आउटसाइड इंडिया, दिस इज अ कंडीशन। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। आपने कल हमने डिटेल में जो प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन डिस्कस किया, बराबर है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कंडीशन गवर्नमेंट ने डाला है, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया। कल हमने डिस्कस किया कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में कब होता है और आउटसाइड इंडिया कब होता है। तो बाय वे ऑफ एग्जांपल भी हम ये कंडीशन को थोड़ा भी देखेंगे। चौथा कंडीशन है दैट वेरेवर रिक्वायर्ड बाय आरबीआई द कंसिडरेशन शुड बी रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। इन सर्टन केसेस सच है, जब आप एसीजेड वगैरह को सप्लाई कर रहे हो तो आपने आईएनआर में भी पैसा मिला तो चलता है, बराबर है। लेकिन बाकी के केस में जैसे आपने यूके को एक्सपोर्ट कर दिया, यूएस को कर दिया, वहां पर आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में पैसा मिलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करके क्वालिफाई नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का वहां रिलेशन नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग कंपनियां होना चाहिए। करेक्ट। नाउ मैं आपको कुछ एग्जांपल पूछता हूं, आप मुझे बताइए ये ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई होगा कि नहीं। ताज होटल गोवा, बराबर है, ताज होटल जो गोवा है, वहां पर एक रशियन टूरिस्ट आता है एंड ही सेज दैट आई वांट टू स्टे इन ताज होटल गोवा, और वहां पर जो भी मैं रहने का जो खर्चा है वो मैं कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज यानी मैं डॉलर में दूंगा, जितना भी आपका बिल होता है। तो वहां पर वो रहा और उसने डॉलर में दे दिया पैसे, जो भी उसके होटल के स्टे थे कि एक्सपेंडिचर। तो और वो कह रहा है कि भैया ये जो ट्रांजैक्शन है एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई होगा, बिकॉज सप्लायर ताज होटल इज इन इंडिया, रिसिपिएंट जो रशियन है ही इज फ्रॉम रशिया, बराबर है। नेक्स्ट वो बोल रहा है मैं फॉरेन करेंसी में पैसा दे रहा हूं और हमारा कोई रिलेशन भी नहीं है, वी आर नॉट हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस, तो मैंने तो कंडीशन फुलफिल कर दिया, तो ये ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई होना चाहिए, आपने मुझे जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। तो इज ही राइट? राजेश इज राइट, करेक्ट। राजेश इज सेइंग इट इज नॉट द सिनारियो व्हिच इज ट्राइंग टू से कि इट इज एक्सपोर्ट सिनारियो करके। व्हाई? बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई जो है एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन में आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। ये जो हमने एग्जांपल देखा, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में कब होता है, जैसे हमने कल डिस्कस किया सेक्शन 13 में, बराबर है। इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन इंडिया, बराबर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाता है। होटल जैसे अकोमोडेशन वगैरह प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंडिया में होगा, तो नेचुरली आपको एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी बेसिकली अगर आप देखेंगे जो भी होटल्स है जिनको भले फॉरेन करेंसी में पैसा मिल रहा है, फिर भी वो एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते, फॉरेन टूरिस्ट को भी जीएसटी इंडिया में पे करना ही पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिमिलरली इंटरमीडिएट सर्विसेज, अगर कोई एजेंट है तो एजेंट बोल रहा है भैया मैं इंडिया में हूँ, जो रिसिपिएंट है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट यूएस है जिसके लिए मैं कमीशन एजेंट का काम कर रहा हूँ, वो इंडिया के बाहर है, वो फॉरेन करेंसी में मुझे पैसा दे रहा है, हमारा कोई रिलेशन भी नहीं है, तो मेरा ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो विल दैट ट्रांजेक्शन क्वालिफाइज एक्सपोर्ट? जैसे हमने अभी डिस्कस किया, यहां पर भी इंटरमीडिएट के केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया में है, बिकॉज सेक्शन 13 सब क्लॉज 8 सब क्लॉज बी में स्पेसिफिकली बोला गया है प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया इन केस ऑफ इंटरमीडिएट सर्विसेज। परफेक्ट दीपाली विष्णु आर राइट, tax will be applicable in such cases because the transaction will not qualify as export of services intermediate के एग्जांपल में। और मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूं कि एक होली ओन इंडियन सब्सिडरी है, तो जो यूनिलीवर लिमिटेड है, यूएस का यूनिलीवर लिमिटेड आपको पता है, उनका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड करके एक इंडियन कंपनी है। 100% अज्यूम करो कि 100% इट इज ओन बाय यूनिलीवर लिमिटेड, 100% होली ओन सब्सिडरी है। तो वहां पर अगर कोई होली ओन इंडियन सब्सिडरी ने जो मेन पेरेंट कंपनी है उसके लिए अगर कोई सर्विसेज दिया, तो वहां पर वो एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? द सप्लायर इज इन इंडिया, जैसा जो हम बात कर रहे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, दे आर इन इंडिया,
सेकंड, रिसिपिएंट यूनिलीवर लिमिटेड जो हमने कहा वो यूएस वाला है, तो वो आउटसाइड इंडिया है। थर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई, अज्यूम करो इंटरमीडिएरी सर्विस नहीं है, ये कोई एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं, तो थर्ड कंडीशन है प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। फोर्थ, उनको कंसिडरेशन भी फॉरेन करेंसी में मिल रहा है, बराबर है। तो 4 कंडीशन तो फुलफिल हो गई, लेकिन फिफ्थ कंडीशन का क्या? फिफ्थ कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? फिफ्थ कंडीशन, सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो फिफ्थ कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? यस और नो? तो काफी सारे केस में, जैसा आपने काफी सारे लोगों ने बोला है कि ये फिफ्थ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वो मेरा हेड ऑफ, जो मेरा पेरेंट कंपनी है, उन्हीं का मैं होली ओन सब्सिडरी हूं। तो ऑलमोस्ट आप सबने नो कहा है, लेकिन फ्रेंड्स प्लीज नोट करिएगा, अगर अगर आपका होली ओन सब्सिडरी यानी कि अगर आपका सेपरेट कंपनी है इंडिया में, इवन इफ इट इज कंप्लीटली ओन बाय द पेरेंट कंपनी, टिल आपको बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट मिलेगा, आपको ये बेनिफिट अवेलेबल होगा, बराबर है। तो अगर कोई आपका यहाँ का इंडियन होली ओन सब्सिडरी अगर पेरेंट कंपनी को सर्विस देता है, बाकी के 4 कंडीशन फुलफिल करता है, तो वहां पर फिफ्थ कंडीशन भी वो फुलफिल कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन का यहाँ पर मीनिंग है हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। अगर आप अलग अलग कंपनी हो, अगर आप अलग अलग कंपनी हो, तो आप हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस नहीं हो, बराबर, यानी कि आप फुलफिल कर रहे हो फिफ्थ कंडीशन भी, करेक्ट। यू आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, दैट मीन्स आपको बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट मिलेगा। एम आई क्लियर? यहाँ पर एक लिंडे का एक जजमेंट भी आया है 2020 में, लिंडे इंजीनियरिंग का, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। लिंडे इंजीनियरिंग का स्पेसिफिक जजमेंट आया है कि अगर होली ओन सब्सिडरी अगर पेरेंट कंपनी को कोई सर्विस देता है, तो दे कैनॉट बी सेड एज मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, बराबर है। दे एंड दैट द रीजन द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट वुड बी अवेलेबल। एम आई क्लियर? तो ये क्वेश्चन, बिकॉज काफी सारे लोगों का आपका आंसर नो आया था, प्लीज नोट करिए। अगर होली ओन सब्सिडरी पेरेंट कंपनी को कोई सर्विस देता है, बाकी के 4 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इवन फिफ्थ कंडीशन को भी आपको बोलना पड़ेगा फुलफिल हो रहा है, बिकॉज दे आर सेपरेट कंपनी। सुपर सुपर जिनल, चलो आगे बढ़ जाते हैं नाउ। तो एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन में अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, अज्यूम करते हैं कि आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो हमने डिस्कस किया, ये पूरे आपके जो कंडीशन है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए फिजिकली गुड्स बाहर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए आपने 5 कंडीशन फुलफिल कर दिया। तो 5 कंडीशन फुलफिल कर दिया सर्विस के लिए या गुड्स के लिए, जो रिलेवेंट कंडीशन है, तो बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, बराबर है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हो, एंड आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो ये विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हो। तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो बेसिकली जब कोई एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स जब एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसने 100 रुपए के गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए बाहर वाली कंट्री में, तो यूके को। तो जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 100 की जगह वहां पर 18% जीएसटी भी लगा सकते हो, यानी आपने 118 में वो गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए। तो आपको कह रहा है ऐसा कोई क्यों करेगा? बिकॉज एक्सपोर्ट के केस में 0 रेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है ना, आप विदाउट जीएसटी निकाल सकते हो ना गुड्स, जीएसटी क्यों लगा रहे हो? तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो आप 18 रुपए जीएसटी लगा रहे हो, ये कस्टमर जो आपका यूके का कस्टमर है आपको रिफंड नहीं देगा आइडियली, बराबर है। आपके कोई भी कस्टमर आप जीएसटी लगा के दोगे, वो आपको पैसा नहीं देगा, वो रिफंड, वो 18 रुपए देंगे नहीं वापस। तो ये 18 रुपए आपको देगा कौन? ये 18 रुपए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। तो गवर्नमेंट कह रहा है 100 रुपए का आप गुड्स एक्सपोर्ट करो, और ये जो 18 है जो पे करना है आपको, ये आपको पे कैसे करना पड़ेगा? आपके पास अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, आपके पास अगर आईटीसी है, और आईटीसी किसका? इनपुट्स का, इनपुट सर्विसेज का, एंड इवन कैपिटल गुड्स का। तो जो भी आपके पास आईटीसी पड़ा हुआ है, वो आईटीसी से आप ये 18 रुपए का पेमेंट कर सकते हो। तो आपके पास समझो 20 रुपए आईटीसी पड़ा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, तो आपने 100 रुपए के गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, तो आप क्या करोगे? 100 रुपए के गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, 18 रुपए मुझे जीएसटी पे करना है, तो आप पैसे पे करोगे। आईटीसी जो आपको 20 बैलेंस है, उसमें से आप 18 रुपए माइनस करोगे, बराबर है। एंड ये जो 18 रुपए आपने माइनस किए हैं आईटीसी से, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका कम हो गया, तो ये आपको 18 रुपए जो आपने पेमेंट किया है ना आईटीसी के थ्रू, इसी का गवर्नमेंट आपको रिफंड लेगा।
रिफंड देगा। तो प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हो, यू आर एनकैशिंग योर आईटीसी, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में जो आपका बैलेंस पड़ा हुआ है वो प्रैक्टिकली आप गवर्नमेंट से रिकवर कर रहे हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड जब आप कर रहे हो विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप कर सकते हो। कब करोगे आप ये ऑप्शन लोगे, जब आपके पास आईटीसी अच्छा खासा पड़ा है तो। अदरवाइज आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी कर सकते हो। ये आप ऑप्शन कब लोगे विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, समझो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है पड़ा हुआ 5 रुपए का है। अगर आप 100 रुपए आपका एक्सपोर्ट का वैल्यू है तो आपको 18 रुपए जीएसटी पे करना है। तो आप बोलेगा मेरे पास 18 रुपए तो जीएसटी का क्रेडिट है नहीं, और मुझे अदरवाइज ऑप्शन क्या है, 5 रुपए क्रेडिट से पे करूंगा, 13 रुपए कैश में। तो मुझे मेरे पास 13 रुपए भी नहीं है कैश में पे करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, वहां पर ऑप्शन लूंगा विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का। तो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में मैं क्या करूंगा कि 100 रुपए का एक्सपोर्ट जो है वो 100 रुपए का ही एक्सपोर्ट करूंगा मैं, कोई जीएसटी वगैरह में लगाऊंगा नहीं। तो प्रैक्टिकली आई एम नॉट चार्जिंग एनी जीएसटी ऑन द आउटपुट। लेकिन अभी मेरे गुड्स तो चले गए, मैंने जीएसटी भी चार्ज नहीं किया, लेकिन बिकॉज आई हैव एक्सपोर्टेड माय गुड्स, जब मैंने वो गुड्स परचेज किए थे, जो रॉ मटेरियल परचेज किया था, उसका मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का 5 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, उसका मैं क्या करूंगा। तो जैसे हमने एकदम स्लाइड्स में जब हम डिस्कस कर रहे थे, एकदम शुरुआत में डिस्कस किया था, जब आप एक्सपोर्ट करते हो आपके पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो सब्जेक्ट टू सर्टेन फॉर्मूला द गवर्नमेंट विल गिव यू रिफंड ऑफ दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट। बराबर है। तो जब आप विदाउट पेमेंट कोई एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है उसका आपको रिफंड मिलेगा। इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज का जो आपका आईटीसी पड़ा हुआ है उसका आपको रिफंड मिलेगा सब्जेक्ट टू सर्टेन फॉर्मूला। हमें क्लियर? परफेक्ट। सिमिलरली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में भी एग्जैक्टली दो ऑप्शन है आपके पास, विद पेमेंट ऑफ जीएसटी, विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो ये स्लाइड में आपको दो आइटम बोल्ड दिखेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। काफी सारे एक्सपोर्टर प्रेफर करते हैं विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी जिनके पास क्रेडिट पड़ा हुआ होता है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, बिकॉज वो बोलते हैं कि जो आईटीसी का रिफंड है वो हम क्लेम कर लेंगे। दोनों केस में इफेक्टिवली आपको वही होने वाला है, जो आपका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस है वो इनकैश करने वाले हो आप दोनों केस में। लेकिन द डिसीजन यू विल हैव टू टेक कि मैं विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट कर रहा हूं, और वो आपको कौन से बेसिस पे लेना पड़ेगा कि मेरे पास आईटीसी का बैलेंस कितना है। करेक्ट? परफेक्ट। इवन एज वी डिस्कस एसईजेड को जब आप सप्लाई करते हो विद इन इंडिया है, आपका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है विद इन इंडिया है, लेकिन उस एसईजेड को भी, वो जो एसईजेड को जब आप सप्लाई कर रहे हो वहां पर भी गवर्नमेंट ने बोला है कि 0 रेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि आप विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी भी गुड सप्लाई कर सकते हो, सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो एसईजेड को, या विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी आप एसईजेड को सप्लाई कर सकते हो। वैसे केस में आपको रिफंड मिलेगा आईजीएसटी का, ऑब्वियसली इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोसेस। यस, तो अभी तक हमने ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लिया विद एंड विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी का। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन था आपके पास, ये जो ऑप्शन था जीएसटी लॉ जब आया तो ये विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये आपके पास ऑप्शन था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अगर आप एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हो, एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज हो, एसईजेड को सप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास चॉइस है, आपको जो करना है करो, विद पेमेंट करना है करो, विदाउट पेमेंट करना है करो। तो दिस वाज द चॉइस अवेलेबल। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट को पता चला, काफी सारे केसेस में गवर्नमेंट को पता चला कि ये जो एक्सपोर्टर्स है, बराबर है, कुछ एक्सपोर्टर्स है वो फ्रॉड कर रहे हैं। यानी कि दे आर एक्चुअली इन्फ्लेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि 100 रुपए का गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली 1000 रुपए दिखा रहे हैं। बराबर है, वो जो रिसिपिएंट है उसके साथ वो सेटलमेंट कर लेते कोई ना कोई कैश में वगैरह। तो ऐसे केस में तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये जो रिफंड का जो बेनिफिट है विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये हम अभी रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ये बजट 2021 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया है और कहा है कि जो विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वाला जो रूट है, नाउ इट वुड बी अ रेस्ट्रिक्टेड रूट, यानी दिस वुड बी अ लिमिटेड रूट। यानी विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अगर आपको करना है तो गवर्नमेंट विल नाउ नोटिफाई करेगा क्लास ऑफ पर्सन एंड क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्हीं के लिए ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज जो बेसिक जो थंब रूल रहेगा वो ये रहेगा कि आपको रिफंड मिलेगा अगर आप एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो, लेकिन रिफंड किसका मिलेगा? अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का। यानी जो दो ऑप्शन थे, प्रैक्टिकली दो में से अभी आपके पास ऑप्शन कितने बचे? एक ही ऑप्शन बचा है। टिपिकली अगर आप स्पेशल क्लास ऑफ गुड्स में कवर्ड हो या स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन में कवर्ड हो तो आपको फिर भी आईजीएसटी पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा। अभी क्लास ऑफ पर्सन में गवर्नमेंट बोल सकता है कि भैया आपके ऊपर कोई केस नहीं हुआ है,
आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है पिछले कुछ कपल ऑफ ईयर्स में, तो आपको बेनिफिट मिलेगा बराबर। लेकिन आपने कोई फ्रॉड वगैरह किया है तो गवर्नमेंट को लगा ऐसे क्लास ऑफ पर्सन को हम बेनिफिट नहीं देंगे, आप विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी गुड्स निकाल ही नहीं सकते हो, बराबर है। तो गवर्नमेंट नोटिफाई करने वाला है, अब तक नोटिफाई हुआ नहीं है, बट इन डेज टू कम दिस प्रोविजन वुड बी नोटिफाइड, और उसके बाद एक रिकमेंडेशन के बाद नोटिफिकेशन आएगा। अभी किसी मिनट पहले किसी ने स्पेसिफिकली, हाँ यस राजेश, अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है क्योंकि बजट का जो प्रोविजन है अभी तक नोटिफाई हुआ नहीं है, वो जब नोटिफाई हो जाएगा उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएंगे। परफेक्ट। उसके बाद जो हम बात करते हैं एलयूटी की, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की, तो नॉन फाइलिंग और डिले इन फाइलिंग ऑफ एलयूटी बहुत बार होता है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जैसा अभी अप्रैल मंथ में आइडियली आपने 1 अप्रैल के पहले एलयूटी फाइल कर देना चाहिए था फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, लेकिन बहुत बार लोग थोड़ा डिले कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो अगर आपके कोई भी क्लाइंट में अगर आपने एलयूटी फाइल नहीं किया है, अगर आप एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो, तो इमीडिएटली एज फर्स्ट थिंग यू शुड गो अहेड एंड फाइल योर एलयूटी, बिकॉज इट्स ऑनलाइन प्रोसेस। भले लॉकडाउन लगा है लेकिन कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट वगैरह को सबमिट नहीं करने हैं। 2017 में जब जीएसटी आया था तब आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, इवन आप एक्साइज में भी फिजिकली सबमिट करते थे। जीएसटी में आपको एलयूटी वगैरह फिजिकली सबमिट नहीं करना है, ऑनलाइन है, वेरी इजी टू डू दैट। जीएसटी के आपके पोर्टल पे लॉग इन करो और आपका एलयूटी इमीडिएटली फाइल करो अगर आपने फाइल नहीं किया है तो। प्लीज नोट, एलयूटी जो फाइल करना है वो ईयर वाइज करना पड़ता है, इट इज नॉट ट्रांजेक्शन वाइज, इट इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए कर दिया तो एंटायर फाइनेंशियल ईयर में आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। अभी हम देखते हैं कि अगर किसी ने समझो अप्रैल मंथ में आपने एक्सपोर्ट कर दिया ट्रांजैक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, लेकिन अगर आपने एलयूटी फाइल नहीं किया या आपने भूल गए, 1 महीना हो गया, 1-1.5 महीना आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपका क्लाइंट करता रहा, लेकिन आप एलयूटी आपने लिया नहीं था 2021-22 का, तो क्या? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ कंसेशन मैं कहूंगा बाय सर्कुलर दिया है। 2 सर्कुलर्स में गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा है कि अगर कोई एक्सपोर्टर गलती से एलयूटी फाइल करना भूल जाता है, डिले हो जाता है, तो देन दैट डिले कैन बी कंडोन्ड, बराबर है। तो ऑफिसर जो है वो चेक करेगा, फैक्ट ऑफ द केस सर्कमस्टेंसेस चेक करेगा और उसके बाद वो कंडोन करेगा आपका डिले, बराबर है। एलयूटी मींस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता क्या है, गवर्नमेंट क्यों बोल रहा है कि एलयूटी आपने देना चाहिए एक्सपोर्ट करने के पहले? बिकॉज एलयूटी का बेसिक मीनिंग क्या है कि भैया आप अंडरटेकिंग दे रहे हो गवर्नमेंट को। अंडरटेकिंग क्या दे रहे हो कि अगर ये गुड्स या सर्विसेज मैंने एक्सपोर्ट नहीं की तो मैं आपको टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ दे दूंगा, बराबर है, अगर कुछ फ्रॉड बाद में पता चला तो। करेक्ट। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि आप, बिकॉज होता क्या है जब आप एलयूटी दे रहे हो इसका मतलब क्यों होता है, क्यों देना पड़ता है एलयूटी, कि जब आपके फैक्ट्री से या आपके डेपो से या आपके वेयरहाउस से जब गुड्स निकल रहे हैं बाहर, तो आप पोर्ट पे भेजोगे, पोर्ट में गुड्स जाएगा, उसके बाद शिप में लोड होगा, उसके बाद गुड्स जाएंगे, तो उसमें कपल ऑफ वीक्स जा सकते हैं। गवर्नमेंट को पता ही नहीं ना, आपने गुड्स तो फैक्ट्री के बाहर निकाल दिए या आपके वेयरहाउस के बाहर निकाल दिए। अगर आपने इंडिया में वो गुड्स को बेचा तो, बिकॉज निकालते वक्त जब गुड्स निकाल रहे थे, इनवॉइस जब बना रहे थे, आपने एक्सपोर्ट का बना दिया, लेकिन बाद में वो गुड्स डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए अगर आपने यूज कर लिए तो गवर्नमेंट बोलता है कि जब आप बोल रहे हो कि एक्सपोर्ट करूंगा तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दो, अंडरटेकिंग दो हमको एक, जैसा हम शपथनामा, हलफनामा बोलते हैं ना, वैसा तब लिख के दो कि भैया आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, अगर नहीं किया तो आप रीपे करोगे जो भी आपको बेनिफिट मिला है, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए भी आपको एलयूटी लगता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए भी लगता है। परफेक्ट, सुपर। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। अभी अगर आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्वालिफाई होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्वालिफाई होता है, बराबर है, और अगर आपने एलयूटी भी अप्लाई करके रखा है, आपको एलयूटी भी मिल गया है, यानी प्रोसीजरल भी आपने टेकन केयर कर दिया है, तो आप बोलोगे कि भैया मुझे रिफंड किसका मिलेगा? तो जैसा हमने कहा कि आपके पास 2 चॉइसेस है, यू कैन पे आईजीएसटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो जो आपने आईजीएसटी पे कर दिया उसका आपको रिफंड मिलेगा, और अगर आपने जो सर्विसेज एक्सपोर्ट किए हैं या गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, बराबर है, और वहां आपने आईजीएसटी पे नहीं किया, यानी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर दिया अंडर एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, बराबर है, आपने विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए, आपने आईजीएसटी कुछ पे नहीं किया, तो आपको जो आपके परचेस साइड पे जो आपके इनपुट्स है, जो आपके इनपुट सर्विसेज है, उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसका आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू रिफंड मिलेगा। वो फॉर्मूला हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी इनपुट और इनपुट सर्विसेज का ही रिफंड मिलता है आपको। आईटीसी की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स का आपको रिफंड नहीं मिलता है। इट्स अ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इन केस ऑफ
अनयूटिलाइज आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड जब क्लेम करते हो तो आपको कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है। अभी हम बात करते हैं कि रिफंड किसका, जीएसटी अमाउंट का तो रिफंड मिलेगा ही, लेकिन कुछ प्रोडक्ट पे कंपेंसेशन सेस भी आपको एप्लीकेबल होता है, उसका भी रिफंड मिलेगा क्या? आंसर इज यस, इवन कंपेंसेशन सेस का भी आपको रिफंड मिलता है। नाउ और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मुझे लगता है ये ऑलरेडी स्लाइड्स कवर हो चुके हैं। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी जो माइंड में आपको रखने, ध्यान रखने हैं, कुछ डेट्स याद रखनी है। प्लीज नोट करिएगा, जब आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उसके लिए आपके पास गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट दिया है 2 साल का, बराबर। रिलेवेंट डेट करके कंसेप्ट है, वहां से आपको 2 साल का टाइम लिमिट कंप्यूट करना है। यानी गवर्नमेंट कह रहा है कि अगर आपको रिफंड लेना है, आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कर दिया, तो आप 10 साल बाद जाके नहीं बोल सकते क्या 2021 में कि मैंने 2021 में मैंने रिफंड किया था, मुझे रिफंड दो। तो गवर्नमेंट बोल रहा है मैक्सिमम 2 साल का हमने टाइम दिया है, विद इन 2 ईयर यू आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर द रिफंड। एडिशनली गवर्नमेंट ने काफी फास्ट ट्रैक कर दिया प्रोसेस। अगर आप अप्लाई करोगे, टिपिकली जब भी आप अप्लाई करते हो रिफंड, जैसा अगर आप कोई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज RFD 01 फाइल करता है ऑनलाइन, तो गवर्नमेंट क्या करता है कि आपको एक्नॉलेजमेंट देता है, भाई आपने फॉर्म बराबर फाइल किया है कि नहीं। एंड टिपिकली वो 2 वीक में यानी 15 दिन के अंदर आपको मिल जाता है एक्नॉलेजमेंट। अगर आपने कुछ गलती किया है तो आपको बेसिकली डिफिशियंसी मेमो आ जाता है, यानी कि जब आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो तो इमीडिएटली या तो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा विद इन 2 वीक्स, या तो डिफिशियंसी मेमो आएगा। डिफिशियंसी मेमो आएगा तो आपको रीसबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन, उसके बारे में थोड़ा आगे और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपका रिफंड एप्लीकेशन बराबर है तो गवर्नमेंट 7 डेज के अंदर आपको 90% रिफंड दे ही देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि 90% रिफंड आपको इमीडिएटली मिल सकता है गवर्नमेंट से, अगर आपका फॉर्म या एप्लीकेशन बराबर है तो। टिपिकली हमने देखा है विद इन 2 मंथ्स ऑफ टाइम आपको रिफंड प्रॉपरली, अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो आपको अप्रोप्रिएटली रिफंड भी मिल सकता है। परफेक्ट। अभी रिलेवेंट डेट का भी कंसेप्ट है, मैंने आगे कवर किया है, अभी मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज रिलेवेंट काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बट उसको थोड़ा आगे कवर किया, विल डिस्कस दैट सेपरेटली। अभी यहाँ पर जैसे हमने कहा कि जो प्रोसेस है रिफंड का वो क्या है कि आपको RFD 01 करके एक फॉर्म है जो फाइल करना है। अगर आप एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम कर रहे हो तो RFD 01 करोगे। अगर आप ITST का रिफंड क्लेम कर रहे हो ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो आपका जो शिपिंग बिल है उसी को रिफंड एप्लीकेशन माना जाता है, बराबर है। लेकिन इनके सब ITC का रिफंड आपको RFD 01 फाइल करना है। तो जैसे हमने कहा कि 02 फॉर्म में आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। अगर आपने बराबर फॉर्म नहीं भरा, रिफंड का कुछ गलतियां है तो डिफिशियंसी में वो देगा, तो गवर्नमेंट आपको, बराबर है। अगर आपका फॉर्म बराबर है, एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो टिपिकली 90% रिफंड इमीडिएटली प्रोविजनल बेसिस पे पास हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ बराबर किया, एक्सपोर्ट के जो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया डॉक्यूमेंट दो, डिटेल दो, इनवॉइसेस का डेटा दो, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का, ITC इनवॉइसेस का, सब डेटा आपने दे दिया FIRC का, तो आपको रिफंड ऑर्डर आ जाएगा। अगर आपने कुछ गलती किया है तो आपको रिजेक्शन ऑर्डर आ जाएगा। अगर आपका रिजेक्शन ऑर्डर आ गया तो आप रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपका ऑर्डर पास करेगा कि बराबर आपको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो ये प्रोसेस है, जो हमने प्रोसीजर अभी डिस्कस किया, ये टिपिकली अगर आप देखोगे रूल 89 से लेकर 96B तक आपको ये सब डिटेल्स प्रोसीजरली जो लिखे हुए गवर्नमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया, कि आपको दिख जाएंगे। थोड़ा आगे हम और इसको माइन्यूटली डिस्कस करेंगे बट सेपरेटली। अभी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, जब हम रिफंड क्लेम करते हैं तो गवर्नमेंट ने रूल 89 में काफी सारे कैलकुलेशन दिए हैं। यहाँ पर कुछ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, मल्टीप्लायर, यानी कि आपको रिफंड किसका मिलेगा। रिफंड आपको मिलेगा किसका, जीरो रेटेड टर्नओवर ऑफ गुड्स का और जीरो रेटेड टर्नओवर ऑफ सर्विसेज का। उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा नीचे, आपका टोटल टर्नओवर। तो आपका टोटल टर्नओवर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये भी गवर्नमेंट ने बताया है। आपको रिफंड किसका मिलेगा, रिफंड मिलेगा ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली नेट ITC करके यूज किया है। और ये जो भी है आपका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, मल्टीप्लायर जो है, इसको गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है। तो पहले देखते हैं कि जो न्यूमरेटर है आपका, बराबर है, यानी जो जीरो रेटेड टर्नओवर ऑफ गुड्स है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या कहा है। तो जीरो रेटेड सप्लाई जो होता है उसके बारे में गवर्नमेंट ने कहा है, वैल्यू ऑफ गुड्स दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई विच इज एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड शैल बी द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड, एक्चुअली एक्सपोर्टेड, बराबर, यानी जो आपने एक्सपोर्ट किया उसका वैल्यू कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक कंडीशन डाल दिया यहाँ पर कि भैया अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो जो टिपिकली डोमेस्टिक मार्केट में आप 100 रुपए में एक्सपोर्ट करते हो,
लेकिन सॉरी 100 रुपए में सप्लाई करते हो, लेकिन वही गुड्स जब आप इंटरनेशनल मार्केट में आप जब बेच रहे हो तो आप 200 में बेच रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जीरो रेटेड सप्लाई जो आप कंसीडर करोगे, जो टर्नओवर कंसीडर करोगे यहाँ पर, वो हम कंसीडर करेंगे 1.5%, 1.5 टाइम्स, 1.5x ऑफ योर डोमेस्टिक प्राइस। यानी डोमेस्टिकली अगर मैं सेम चीज 100 रुपए में मैं वाटर बॉटल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सेम वाटर बॉटल में डोमेस्टिकली 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो 200 में बेच रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कहता है एक्सपोर्ट के लिए भले आपने 200 में बेचा, दैट इज योर एंड बिटवीन योर कस्टमर, लेकिन जब हम रिफंड आपको देने वाले हैं तो उस कैलकुलेशन में आपको एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर कंसीडर करना है वो कितना कंसीडर करना है, 150, बराबर है। तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल पूछता हूं कि मेरा जो प्राइस था डोमेस्टिकली, मैं रिफंड क्लेम करता हूँ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का, मेरा जो प्राइस था डोमेस्टिकली, मेरा जो प्राइस ऑफ गुड्स था 1000 रुपया, बराबर है। एंड अभी मैं इंटरनेशनल मार्केट में वो चीज को 1200 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड जो गुड्स है जीरो रेटेड सप्लाई कितना होगा? विल दैट बी 100,000, विल दैट बी 1200 और विल दैट बी 1500? तो विशाल, रवि, कमल, you are saying 1200, Arvind is also saying 1200. Perfect, because it is whichever is less. Superb. You are perfect, you are right that it is actually whichever is less. तो अगर समझो यही एग्जांपल में 1000 रुपए में जो डोमेस्टिकली गुड्स सप्लाई कर रहा हूं, यही वाटर बॉटल में इंटरनेशनल मार्केट में समझो मैं उसको सप्लाई कर रहा हूं 1800 रुपए में, तो ऐसे केस में मेरा एक्सपोर्ट के लिए क्या रहेगा वैल्यू? Abhay, you are right, it is 1500. Perfect. Kamal, Pranjali, Mayur, all of you are right, it is 1500. Super. Dipali, you are right, it is 1500. तो ये हो गया आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए पहली बात तो ये याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा 1.5x वाला कंडीशन गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। अभी आप कहोगे क्यों नहीं दिया है, उसका रीजन ये है कि गुड्स के लिए आप कंपेयर कर सकते हो गुड्स टू गुड्स, सर्विस टू सर्विस कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट है, बराबर है। बिकॉज जैसा एज अ कंसल्टेंट अगर हमारे पास दो क्लाइंट आते हैं, एक है टाटा मोटर्स और एक आता है फोक्सवैगन, तो टाटा मोटर्स और फोक्सवैगन को भले हमने ओपिनियन सेम दिया है, एडवाइजरी सेम इश्यू के ऊपर है, लेकिन अलग अलग बेसिकली बिलिंग होगा, बिकॉज टाइम अलग जाता है, क्वेरी डिस्कशन अलग होता है, बराबर है। तो बेस्ड ऑन दैट वी टिपिकली बिल, तो कंपेयर कभी एप्पल टू एप्पल नहीं हो पाता है। दैट द रीजन गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने कंडीशन डाला है 1.5x का, सर्विसेज के लिए जब आप जीरो रेटेड टर्नओवर कंसीडर करोगे ऐसा कोई कंडीशन डाला नहीं है। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे हमने देखा जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, वन ऑफ द कंडीशन इज आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करके क्वालिफाई तभी होगा, इट विल क्वालिफाई द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली व्हेन द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। ऑब्वियसली जैसे हमने बोला कि अगर आप एसीजेड को सप्लाई करते हो तो डोमेस्टिक आईएनआर में भी आया तो चलता है, बराबर है। इवन नेपाल भूटान के केस में भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है। तो इन सर्टन केसेस मनी इवन इफ इट इज रिसीव्ड इन आईएनआर दैट इज परमिसिबल, बट इन नॉर्मल केसेस जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यूके को, यूएस को, यूएई को, बराबर, इन सच केसेस इफ यू आर एक्सपोर्टिंग सर्विसेज यू नीड टू एंश्योर कि आपको वो पैसा मिलना चाहिए, तभी वो ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के डेफिनेशन में क्वालिफाई होगा, तभी वो ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई होगा। एंड दैट इज व्हाट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द डेफिनेशन ऑफ जीरो रेटेड टर्नओवर ऑफ सर्विसेज, बराबर है। तो यहाँ जो हम टर्नओवर लेते हैं जीरो रेटेड सर्विसेज का, यहाँ मनी रिसीव्ड इन करंट पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, यानी कि आपको पैसा मिलना चाहिए। अभी पैसा टिपिकली क्या होता है, कभी कभी आपको एडवांस का भी पैसा मिल जाता है, अगले सर्विसेज का भी, एंड कभी कभी पिछला कुछ पैसा मिलता है। तो गवर्नमेंट ने बोला है जो पहले आपने सर्विस कंप्लीट कर दिया उसका कुछ पैसा मिला तो वो टर्नओवर में कंसीडर करो, नो प्रॉब्लम। ये महीने में, यानी अगर मैं मई महीने की बात कर रहा हूँ, मई महीने में मैंने कुछ सर्विस दिया, उसका मुझे मई महीने में पैसा मिला, वो भी कंसीडर करो। लेकिन मई मंथ में अगर मुझे जुलाई का कुछ पैसा मिला अगले 2 महीने के बाद का, जो सर्विस मैंने दिया भी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला है वो टर्नओवर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो जो, अगर हम बात करते हैं आपको $1000 मिला है, कौन सा, जुलाई महीने का, तो गवर्नमेंट बोलता है कि वो जुलाई महीने के टर्नओवर में आएगा। यानी एडवांस कुछ मिला है फ्यूचर प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए, तो वो फ्यूचर मंथ में कंसीडर करना है आपको, am I right? तो बेसिकली अगर आप देखोगे जीरो रेटेड टर्नओवर ऑफ गुड्स और जीरो रेटेड टर्नओवर ऑफ सर्विसेज के जो ट्रांजैक्शन में, गुड्स के ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन का कहीं पर क्राइटेरिया डाला नहीं है, सर्विस में डाला है।
बराबर। यहाँ कंसिडरेशन पैसा कितना आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, बिल कितने रेज किए दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, माइट बी वन ऑफ द क्राइटेरिया बट नॉट फुल्ली इंपॉर्टेंट। इनके साथ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, द ओनली क्राइटेरिया भैया गुड्स एक्सपोर्ट हो जाए, फुल स्टॉप, बराबर है। तो एक्सपोर्ट हो गया तो दैट्स इट, तो आपने इनवॉइस रेज कर लिया एक्सपोर्ट का, फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपने भले इनवॉइस रेज कर लिया और आपने सर्विस दिया ही नहीं है, आपको पैसा मिला ही नहीं है, तो ऐसे केस में वो कंसिडरेशन आपको मिला नहीं है, तो आपको एक्सपोर्ट ऑफ जो टर्नओवर है, जो आपको जीरो रेटेड टर्नओवर है, उसमें वो कवर नहीं होगा। राइट, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो टोटल टर्नओवर है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, वहां पर भी कुछ बोला है स्पेसिफिकली, मैं क्विकली आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका एग्जम्प्टेड सप्लाई वो एक्सक्लूड कर दो, बिकॉज एग्जम्प्टेड सप्लाई के केस में प्रैक्टिकली आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को ज्यादा लोगे भी नहीं, आप अवेलेबल नहीं है आपको, बराबर है। तो इसके लिए शायद हो सकता है गवर्नमेंट ने बोला है कि लेस एग्जम्प्टेड सप्लाई। बाकी अगर आप देखोगे जीरो रेटेड सप्लाई, बिकॉज टोटल टर्नओवर के केस में जीरो रेटेड सप्लाई का जो हमने अभी कैलकुलेट किया था टर्नओवर, और जीरो रेटेड सप्लाई के टर्नओवर में हमने बोला था आपको, क्या बोला है बेसिकली, जो भी आपका रिफंड जो मिलेगा वो कौन से बेसिस मिलेगा, जितना आपको कंसिडरेशन रिसीव हुआ उतने बेसिस पे मिलेगा, वही बेसिस पे, करेक्ट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो भी सर्विस के लिए जो कंसिडरेशन मिला है, पास्ट वाले सर्विस जो दे चुके हो या करंट मंथ में जो सर्विस दिया जिसका पैसे मिला है, वो आपको कंसिडर करना है। तो वही आप न्यूमरेटर में भी लोगे और वही आप डिनोमिनेटर में भी लोगे। हमें क्लियर, परफेक्ट। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो प्रोविजन है, जो टर्म है, वो यहाँ पर रूल में जो बताया गवर्नमेंट ने, दैट इज नेट आईटीसी। जब हम नेट आईटीसी की बात करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, आईटीसी ऑफ ओनली इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, इट डज नॉट इंक्लूड कैपिटल गुड्स, दैट इज वन। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। तो यार रिलेवेंट पीरियड क्या, किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है, तो रिलेवेंट पीरियड यानी आप मंथ के लिए फाइल कर सकते हो रिफंड क्लेम, आप क्वार्टर के लिए कर सकते हो, आप हाफ ईयर के लिए कर सकते हो, आप साल भर के लिए कर सकते हो, आप 2 साल के लिए भी कर सकते हो। तो जो भी आपका रिलेवेंट पीरियड है, जिस पीरियड के लिए आप रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हो, उस पीरियड में जितना आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो रिफंड आपको मिलेगा, वो आईटीसी के डेफिनेशन में आएगा। आपका प्रैक्टिकली ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ रहेगा तो वो कवर नहीं होगा यहाँ पर, बराबर है। और एक एडिशनल इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने बोला है जो रिफंड है यहाँ पर प्लीज नोट करिएगा, रिफंड जो है, रिफंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू आईटीसी विच इज अपीयरिंग इन योर 2A। तो बहुत बार आपको पता है रूल 36 सब क्लास 4 के हिसाब से 5% आपको 5% ज्यादा आपको क्रेडिट मिलता है, बराबर है। लेकिन जब रिफंड की बात आती है तो रिफंड उतना ही मिलेगा आपको जितना 2A में दिख रहा है, करेक्ट। अगर आपके 2A में रिफंड नहीं दिख रहा है तो आपको रिफंड ना, आईटीसी नहीं दिख रहा है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। हमें क्लियर, परफेक्ट। अभी फाइनली जो आपको रिफंड मिलेगा, करेक्ट, जब आप कैलकुलेट करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और आईटीसी से जब मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर जो भी आपका रिफंड है इट इज सब्जेक्ट टू फर्दर लिमिटेशन। तो एक आता है आपका मैक्सिमम रिफंड, तो अज्यूम करते हैं कि मैक्सिमम रिफंड जो अभी हमने कैलकुलेट किया जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज का डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय नेट आईटीसी, ये कैलकुलेट करके आपका रिफंड का अमाउंट आया समझो 8 लाख रुपया, अज्यूम करते हैं। तो गवर्नमेंट बोलता है कि आप चेक करो कौन से मंथ के लिए आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो। तो अज्यूम करते हैं यहाँ पर अगस्त 2019 मंथ के लिए आप रिफंड अप्लाई कर रहे हो। तो जब हम अगस्त 2019 के लिए जब रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो उस महीने का गवर्नमेंट बोल रहा है रिफंड का आप अमाउंट आईटीसी का देखो कितना है। तो उस महीने का आईटीसी का अमाउंट अज्यूम करते हैं 10 लाख रुपीज है। तो आपने रिफंड क्लेम, मैक्सिमम रिफंड जो हमने कैलकुलेट किया उसके हिसाब से 8 लाख आ रहा है। अगस्त महीने का जो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है आपको वो आ रहा है 10 लाख। और आपने रिफंड क्लेम सबमिट कब किया, मई 2021, यानी इस महीने में अगर आपने रिफंड क्लेम कर लिया है तो गवर्नमेंट बोलता है इस महीने का आपका आईटीसी का बैलेंस कितना है वो चेक करो। तो ये तीनों में से जो लोएस्ट फिगर रहेगा उतना आपको रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पर अज्यूम करते हैं करंट क्रेडिट लेजर में आपके पास 4 लाख रुपए का बैलेंस है, तो गवर्नमेंट बोलता है 4 लाख का ही क्रेडिट का आपको रिफंड मिलेगा। भले मैक्सिमम रिफंड जो हमने पहले डिस्कस किया 8 लाख रुपए आया, जब हमने अप्लाई किया तब 6 लाख था, और अगर अभी आपने जब आपने अप्लाई किया ये महीने में, मई महीने में 2021 में, अगर उस टाइम पे अगर आपका रिफंड का जो आईटीसी का जो अमाउंट है, इस महीने का जो आईटीसी बैलेंस है वो 4 लाख ही रहेगा, तो प्रैक्टिकली आपको रिफंड सिर्फ 4 लाख रुपए का ही मिलेगा। परफेक्ट। तो अभी हम क्या करते हैं,
थोड़ा प्रोसीजर भी समझते हैं रिफंड का, बिकॉज रिफंड का जो प्रोसीजर है, ये 2 साल का जो टाइम लिमिट है वो रिफंड के लिए भी आपको अप्लीकेबल होता है दीपाली। 2 साल का टाइम लिमिट सब रिफंड के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि आपका एक्सपोर्ट का रिफंड रहेगा, रेगुलर अदर रिफंड कुछ भी रहेगा तो बराबर है। तो अभी हम क्विकली डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस के लिए आपको जीएसटी में आपका जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे लॉगिन करोगे, सर्विसेज में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर रिफंड दिखेगा टैब, उसको आप क्लिक करो तो आपको पहले गवर्नमेंट पूछेगा भैया रिफंड किसका आपको चाहिए, बराबर है। रिफंड किसका चाहिए आपको, रिफंड चाहिए रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन आईटी, आपका कैश लेजर, आपने ज्यादा कैश लेजर में भर दिया पैसा तो उसका रिफंड, तो आपको इमीडिएटली बहुत बार मिल जाता है अगर आपको चाहिए तो। सेकंड, आपको रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड चाहिए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज मेड टू एसीजेड, बराबर, यानी कि गवर्नमेंट आपको स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि रिफंड किसका चाहिए। दिस इज वेरी क्रिटिकल, आपको यह चेक करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा कौन सा आपको रिफंड चाहिए। उसके बाद में आपको पीरियड, जैसा हमने एग्जांपल में लिया अगस्त 2019 का हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं, ये महीने का, बराबर है। तो जैसे हमने कहा महीने का कर सकते हो, क्वार्टर का कर सकते हो, एनुअल भी कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए। उसके बाद में जब आप फॉर्म भर रहे हो आपको गवर्नमेंट कुछ डिटेल मांगता है। ये डिटेल क्यों मांगता है, बिकॉज जैसे हमने एक न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला देखा था, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, बराबर है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर आएगा और उसको मल्टीप्लाई करोगे आप नेट आईटीसी से, उसके बाद आपका रिफंड क्लेम डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट वो जो आपको स्टेटमेंट 3 में ये कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। उसके बाद गवर्नमेंट पूछता है भैया बैलेंस कितना है आपका, बराबर है, बैलेंस अगस्त 2019 का कितना है और मई 2021 में कितना है। और जैसे हमने डिस्कस किया, ये तीनों में से जो मिनिमम रहेगा, ये तीनों में से जो मिनिमम रहेगा उस अमाउंट का आपको रिफंड मिलेगा। यहाँ पर बाद में गवर्नमेंट आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछता है। बहुत बार लोग रिफंड क्लेम करते हैं, जैसा हमने एक केस में देखा कि कंपनी का मर्जर हो जाता है या कुछ चेंजेस हो जाता है, बैंक अकाउंट ऑपरेशन बंद हो जाता है, तो वहां पर, और कभी कभी तो बैंक अकाउंट आपका अटैच भी हो जाता है, जीएसटी अथॉरिटीज अटैच भी करते हैं। तो याद रखिएगा ये पॉइंट को, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट अटैच हो गया है, कुछ गलती से कुछ बैंक अकाउंट आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पर रिफंड क्लेम करते हो ध्यान रखिएगा, गलती से आपका वही अकाउंट जो अटैच हो गया उसमें अगर पैसे चला गया तो इट इज एज गुड एज द गवर्नमेंट मनी ओनली, आप रिक्लेम नहीं कर पाओगे, बराबर, अटैचमेंट में ही रहेगा। इसके लिए ध्यान रखना चाहिए आपने। बहुत बार जैसे हमने कहा कि नॉन ऑपरेटिव अकाउंट दिए जाते हैं, तो वो भी याद रखिए कि आप करेक्ट अकाउंट नंबर वहां पर डालो, अदरवाइज उस अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। परफेक्ट। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, बिकॉज ये पूरा जो प्रोसेस है आपको इंश्योर करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस जो आप कर रहे हो ऑनलाइन है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहले तो 2 MB 3 MB इतना डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पॉसिबिलिटी दिया था, अभी तो भी उन्होंने इंक्रीज करके अप टू 50 MB कर दिया है। तो अब आप ऑनलाइन ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ऑब्वियसली हमने प्रैक्टिकल देखा है कि आप ऑनलाइन सभी भी ऑल डॉक्यूमेंट भी परफेक्टली अपलोड करते हो, तभी भी जीएसटी अथॉरिटीज कुछ ना कुछ क्वेरी के लिए आपको फोन करते हैं, फॉलोअप करते हैं एंड फिजिकली भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जबकि प्रैक्टिकली जरूरत नहीं है फिजिकल डॉक्यूमेंट कुछ भी सबमिट करने की। लेकिन वी आर सीन दैट अथॉरिटीज बहुत बार प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट मांगते हैं, देन यू आर एक्सपेक्टेड टू फिजिकली सबमिट द फाइल। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरा कर दिया, जीएसटी अथॉरिटी बोलते हैं कि फिर से पूरा फाइल आप फिजिकली प्रिंट करके आप हमको सबमिट करो, बिकॉज दे आर यूज्ड टू लुकिंग एट दोज डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। तो ये भी एक प्रैक्टिकल चैलेंज हमने देखा है, उसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, अगर आप के गुड जो है, अगर आपके गुड्स अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगता है, तो जैसा हमने देखा है लेदर गुड्स वगैरह जो रहते हैं, तो रॉ लेदर जो है उसके ऊपर अगर समझे एक्सपोर्ट ड्यूटी एप्लीकेबल है तो आपको रिफंड का बेनिफिट नहीं मिलता है आईटीसी का। सिमिलरली अगर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया सेंट्रल टैक्स पे, तो वहां पर भी आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट इसे आपने दोनों बेनिफिट नहीं लेने चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन आपसे लिया है, और वो डिक्लेरेशन आप यस करोगे, एक्सेप्ट करोगे, उसके बाद आपको यूलिटी का रेफरेंस नंबर डालना है और उसके बाद आप एक्सपोर्ट का रिफंड आप सबमिट कर पाओगे। ठीक है। अभी यहाँ पर और भी कुछ प्रोसेस है, जैसा अगर आप देखोगे यहाँ पर अदर कुछ फॉर्मेलिटीज है, अदर कुछ फॉर्मेट्स है जो आपको फाइल करने हैं, जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर रिलेटेड अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो भी आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रहेगा तो उसकी डिटेल यहाँ पर ईजीएम करके वर्ड दिखेगा। आपने और हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट फाइल किया जाता है, बराबर है, उसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर बीआरसी डिटेल्स है, आपके एफआईआरसी डिटेल्स है, जो भी पैसा आपको मिल रहा है उसकी डिटेल्स है। तो आप एक इनवॉइस की डिटेल दे रहे हो और एक जगह पर आप जो पैसा आपको मिला है उसकी डिटेल दे रहे हो, बराबर है।
एडिशनली जो आपका 2A जो परचेस का ITC का है, वो डिटेल आप इस फॉर्मेट में या स्टेटमेंट 3 में गवर्नमेंट को सबमिट करते हो। सो विद दिस फ्रेंड्स वी आर ऑलमोस्ट थ्रू विद द प्रोसेस आल्सो। तो पहले हमने कंसेप्चुअली समझा कि भैया आपको एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो गवर्नमेंट ने आपको चॉइस दिया है। चॉइस क्या दिया है? एक तो आप एक्सपोर्ट ऑफ जो गुड्स या सर्विसेज है विद पेमेंट ऑफ IGST कर सकते हो या विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, बराबर है। नाउ ये जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ IGST या विदाउट पेमेंट ऑफ IGST या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ IGST या विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, ये जो पूरा गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट दिया है, इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। और उस कंडीशन में हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि बेसिकली एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन है आपका, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन है तो एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई होना चाहिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का ट्रांजेक्शन है तो एक्सपोर्ट करके क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि जो कंडीशन गवर्नमेंट ने दी है वो फुलफिल होनी चाहिए। गुड्स के केस में भी और सर्विस के केस में भी हमने डिस्कस किया कि गुड्स के केस में गवर्नमेंट ने रूल 96 भी इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर आपको कंसिडरेशन फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में मिलना चाहिए, बराबर है। अगर RBI के टाइम लिमिट का अगर 1 साल है तो 1 साल के अंदर मिलना चाहिए। अगर RBI का टाइम लिमिट को आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो विद इन द एक्सटेंडेड टाइम लिमिट यू शुड रिसीव इट। अगर विद इन एक्सटेंडेड टाइम लिमिट नहीं मिला तो आपको गवर्नमेंट को रिफंड देना पड़ेगा, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो आपको रिफंड मिला है, बराबर है। सिमिलरली एक्सपोर्ट ऑफ के सर्विसेज के केस में हमने डिस्कस किया आपका ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तभी क्वालिफाई होगा जब कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आपको मिलता है तो, बराबर है, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इन सर्टन केसेस जैसे SEZ के लिए हमने डिस्कस किया कि भले INR में पैसा मिला तो भी आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिलेगा या अवेलेबल है। उसके बाद हमने देखा जो रिफंड मिलता है आपको, ये रिफंड जो इट इज गवर्न बाय सर्टन रूल्स, जहां पर रूल 89 करके जो इंपॉर्टेंट रूल है, जहां पर गवर्नमेंट ने कुछ फॉर्मूला दिए हैं, बराबर है। यहाँ न्यूमरेटर कुछ है, कुछ डिनोमिनेटर है और कुछ मल्टीप्लायर है। जहां पर मल्टीप्लायर में हमने नेट ITC का डेफिनेशन देखा, वहां पर हमने टोटल एडजस्टेड टर्नओवर देखा। सिमिलरली जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का जो टर्नओवर है उसका डेफिनेशन या मीनिंग देखा। यहाँ पर जो क्रिटिकल एस्पेक्ट या क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने समझी या देखी वो ये थी कि नेट ITC यानी जो ITC आपने क्लेम किया है, जो अवेल किया है, उसी का रिफंड मिलेगा आपको, बराबर है। जब हम ITC का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो ओपनिंग बैलेंस आपका ITC में आता ही नहीं, यानी जितना क्लेम किया ITC उस महीने में उतना ही आपको रिफंड मिलेगा। ओपनिंग का आपको ITC का रिफंड नहीं मिलेगा जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड क्लेम कर रहे हो। ये हमने एस्पेक्ट डिस्कस किया इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने ये भी देखा जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में गवर्नमेंट ने 1.5x का रिस्ट्रिक्शन डाला है। अगर आप डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहे हो सेम गुड्स तो 1.5x आपको वैल्यू लेना चाहिए मैक्सिमम। जैसे हमने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस किया, 1000 रुपीज का गुड्स है, आपने एक्सपोर्ट किया 1600 में, जबकि डोमेस्टिकली 1000 में एक्सपोर्ट करते हो, तो वहां पर गवर्नमेंट ने बोला 1500 ही एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की आप वैल्यू ले सकते हो जीरो रेटेड सप्लाई की, बराबर है। ये क्यों कंडीशन डाला? बिकॉज कुछ लोग एक्सपोर्ट्स का वैल्यू ओवर इन्फ्लेट करके रिफंड ज्यादा क्लेम कर रहे थे। टू रेस्ट्रिक्ट दैट द गवर्नमेंट हैज पुट दिस कंडीशन। यहाँ प्रैक्टिकली हमने काफी सारे एक्सपोर्टर के साथ जब डिस्कस किया तो काफी सारे केस में प्रैक्टिकल चैलेंजेस देखे कि अगर आपके पास सिमिलर गुड्स नहीं है मार्केट में, अगर आप सप्लाई ही नहीं कर रहे हो तो क्या होगा। ये काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत बार एक्सपोर्ट के गुड्स आपके अलग रहते हैं, क्वालिटी अलग रहता है, डोमेस्टिक जो आप सप्लाई कर रहे हो सिमिलर दिखते हैं लेकिन सेम नहीं रहते। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली हमने कुछ चैलेंजेस देखे जो एक्सपोर्टर करंटली फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट वी होप दैट अप्रोप्रिएट क्लैरिटी एस्पेक्ट प्रोवाइड करे। उसके बाद हमने प्रोसेस देखा रिफंड का। जैसे हमने कहा टिपिकली आपको RFD 01 जो फॉर्म फाइल करना है उसमें कुछ डिटेल्स गवर्नमेंट मांगता है, कुछ डिक्लेरेशन मांगता है, कुछ स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट मांगता है जो आपको अपलोड करने हैं। अगर आप ये सब बराबर अपलोड करोगे तो टिपिकली आपको रिफंड मिल जाता है, रिजेक्शन नहीं होता है, डिफिशियंसी मेमो वगैरह आपको इशू नहीं किया जाता है। हमने ये भी डिस्कस किया बिकॉज आपने जो फॉर्म्स या जो प्रोसेस देखा रहेगा जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पर, यू कैन अंडरस्टैंड कि आप RFD 01 में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आपको विद इन 15 डेज 2 वीक्स में टिपिकली एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी में देना है गवर्नमेंट को तो विद इन 15 डेज हमने देखा है कि मैक्सिमम केस में RFD 03 आपको इशू किया जाता है। किसी ने पूछा है कि अगर मुझे नहीं मिला है, RFD 03 नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए? जो जुडिशियल ऑफिसर है उनके पास आप अप्रोच करिए। टिपिकली ऐसा केस होता नहीं है, बट अगर हुआ है तो अथॉरिटीज को लिखिएगा, ईमेल लिखिएगा। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करे तो कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो टिपिकली आपको RFD 03 दिखना चाहिए, मिलना चाहिए। एंड जैसा हमने डिस्कस किया, अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको 90% रिफंड तो स्ट्रेट अवे मिल जाता है। उसके बाद में अगर अथॉरिटीज को कोई क्वेश्चन है तो आपको पूछता है, डॉक्यूमेंट है तो मांगता है,
और उसके बाद अगर अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाते हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद, तो आपको टिपिकली 10% जो बचा हुआ रिफंड है वो भी आपको मिल जाता है। दैट इज हाउ यू गेट 100% रिफंड। फ्रेंड्स प्लीज नोट करिएगा, रिफंड जो है ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके टैक्स पेइंग जो क्लाइंट्स है उनके लिए। इससे आपका जो कैश फ्लो है, बिकॉज डोमेस्टिकली आप काफी सारे जो सप्लायर देखोगे सफर कर रहे हैं, उनको कस्टमर के थ्रू पैसा नहीं मिल रहा है। तो अगर आप एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स हो तो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल बेनिफिट विच इज अवेलेबल टू यू। आप जो भी आपका आईटीसी है बेस्ड ऑन द रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, यू कैन क्लेम इट एज द रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो ट्राई टू अप्लाई इट एट द अर्लीस्ट। बहुत बार लोग क्या करते हैं, 2 साल का जो टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने दिया है, तो लोग एकदम 1.5-2 साल का एंड होने का वेट करते हैं, उसके बाद 1.5 साल के बाद रिफंड के लिए क्लेम करते हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट मेथोडोलॉजी। ट्राई टू अप्लाई इट एट द अर्लीस्ट, बराबर है। विद इन नेक्स्ट 6 मंथ भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको पैसे वगैरह आ गए, अगर आप एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज है तो व्हाई यू वांट टू वेट, बराबर है। एडिशनली जब आप ये रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हो, इंश्योर करिएगा आप डॉक्यूमेंट जो है, डिटेल जो है वो अप्रोप्रिएटली सबमिट करिएगा। एडिशनली जब आप जीएसटीआर 1, 3 भी जब फाइल कर रहे हो, वहां पर भी जो आपको अप्रोप्रिएट कॉलम है, रोज है, वहीं पर आप डिटेल डिस्क्लोज करिएगा। फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर 3A है और 3B है, बराबर है। वहां पर आपको 3B जो टेबल है वहीं पर आपको एक्सपोर्ट की डिटेल डालनी है। बहुत बार लोग 3A में डाल देते हैं और फिर रिफंड ही नहीं मिलता है, करेक्ट। तो आपको जो डिटेल जब आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, वहां पर कुछ एरर सिस्टम के भी होते हैं, जैसा अभी राजेश ने हाईलाइट किया कि डिफिशियंसी मेमो नहीं दिख रहा है, वो ऑफिसर का काम है, वो करेक्ट करके देगा अगर आप उसको फॉलो करोगे तो। एंड इवन अभी गवर्नमेंट ने स्कीम भी निकाला है, 15 मई से गवर्नमेंट बोल रहा है नेक्स्ट 2 वीक्स जो भी आपका रिफंड क्लेम में हम प्रोसेस करेंगे, अगर आपका पेंडिंग है तो। गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम निकाला है 2 वीक्स का, तो अगर आपका पेंडिंग है कोई सिस्टम ग्लिच की वजह से तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, आपके जो खुद के एरर है वो कम से कम करिएगा, मिनिमाइज करिएगा, बिकॉज ये काफी सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। एक बार अगर सिस्टम लेवल पे रिफंड स्टक हो जाता है तो कोई भी ऑफिसर भी हमने देखा है बहुत बार हेल्प नहीं कर पाते, बिकॉज जीएसटी लेवल पे रिफंड अगर स्टक हो गया तो वेरी डिफिकल्ट टू गेट द रिफंड फ्रॉम अथॉरिटीज। सो बेटर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसा कोरोना में होता है ना, कोरोना ना हो यही अच्छा है, अगर हो गया तो आपको ऑब्वियसली दवाई वगैरह मिल सकता है या वो भी मिलने का क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मच बेटर दैट अगर आप प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स लो तो, बराबर है। तो सिमिलरली एरर ना हो तो बेटर है। तो विद दिस फ्रेंड ऑलमोस्ट वी आर नाउ थ्रू विथ द सेशन। तो अभी आपके कुछ बेसिक क्वेरी भी आ सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास रिफंड नहीं आ रहा है टाइमली, अथॉरिटीज प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या करना चाहिए। तो ट्राई टू कनेक्ट विद अथॉरिटीज, ट्राई टू कॉन्टेक्ट देम, ईमेल करिए, कमिश्नर्स वगैरह के भी ईमेल आईडी अवेलेबल होते हैं, बराबर है। तो उनको ईमेल करिएगा, सबमिट करिएगा। अगर आप मराठा चेंबर के या गीता परिवार के अगर आप मेंबर है तो आप इनके थ्रू भी रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं कमिश्नर्स वगैरह को, जनरल रिप्रेजेंटेशन कि भैया ये एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स कम्युनिटी है, इनको रिफंड नहीं मिल रहा है। तो उससे भी कभी कभी हेल्प होता है। और हमने देखा है रिफंड टाइम, ये कोरोना के टाइम में लास्ट 1 ईयर में अथॉरिटीज काफी प्रॉम्प्टली रिप्लाई देती है अभी, जबकि पहले तो फिजिकली रिफंड जब हम सबमिट करते थे, फिजिकली इंटरेक्ट करते थे, तभी भी इतना क्विकली काम नहीं होता था। लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर में हमने देखा ज्यादा रिफंड प्रोसेस हो रहे हैं। तो थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ईमेल लिखने पड़ेगा। लेकिन अगर आपका रिफंड स्टक है, आइडियली इट शुड गेट प्रोसेस। किसी ने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बारे में, रिफंड के बारे में बात किया है। ऑब्वियसली आज का टॉपिक एक्सपोर्ट एंड रिफंड था, तो टाइम इतना था नहीं, मे बी सम अदर डे वी विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। 2-3 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सिनेरियो आपके पास है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यानी क्या कि आपका आउटपुट के ऊपर 5% आप टैक्स पे कर रहे हो, और आप जो इनपुट परचेस कर रहे हो उसके ऊपर आप 18% टैक्स पे कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बोला है दिस इज अ सिनेरियो ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आउटपुट पे कम टैक्स रेट है, इनपुट पे ज्यादा टैक्स रेट है, तो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा रह रहा है, बराबर है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि भले आप डोमेस्टिकली गुड सप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ वैक्सीन की, वैक्सीन के केस में जो आउटपुट टैक्स रेट है 5% है, लेकिन जो परचेज जो भी रॉ मटेरियल करते हैं उसका 18% जीएसटी रेट है। तो वैसे केस में इन्वर्टेड ड्यूटी के केस में गवर्नमेंट ने कहा आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन रिफंड आपको किसका मिलेगा, सिर्फ इनपुट के एक्सटेंड में, इनपुट सर्विसेज के एक्सटेंड में भी नहीं मिलेगा। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में याद रखिएगा सिर्फ इनपुट के एक्सटेंड में ही आपको रिफंड मिलता है। रूल 50 सेक्शन 54 ऑफ क्लॉज 3 का जो प्रोविजन उसमें ये स्पेसिफिकली लिखा गया है। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं, यहाँ पर 2 कॉन्ट्ररी जजमेंट अभी आए हैं। एक जगह बोला गया है इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों का रिफंड मिलेगा, और एक जजमेंट में बोला गया है कि सिर्फ इनपुट्स का ही आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में रिफंड मिलेगा।
हमारा व्यू ये है कि आपको सिर्फ इनपुट के एक्सटेंड ही मिलेगा, इनपुट सर्विसेज के एक्सटेंड नहीं मिलेगा। अगर आप सेक्शन 50 पर सब क्लास 3 का जो प्रोविजो है वो ध्यान से पढ़ेंगे तो स्पेसिफिकली आपको ये बात यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो चलो, मुझे लगता है वी आर थ्रू विद द सेशन। तो इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक क्वेरी नाउ विच इज पेंडिंग, वी कैन टेक इट अप नाउ। कुछ पॉइंट तो मुझे लगता है, थैंक यू राजेश, यू हैव रिप्लाइड ऑलरेडी, आई विल नॉट रिप्लाई दोस पॉइंट्स नाउ। तो हो सकता है फ्रेंड्स आपने एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन या जो है रिफंड है, काफी हमने प्रैक्टिकल देखा कि काफी कम लोग हैं जो ये प्रोसेस को जानते हैं। इसके लिए एक्सप्लेन करना, बिकॉज इट हैज 2 to 3 डायमेंशन। एक तो एक्सपोर्ट में क्या हो जाता है, कस्टम का भी प्रोसेस आ जाता है, प्लस जीएसटीएन का भी प्रोसेस आ जाता है, प्लस रूल्स भी बहुत काफी सारे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फॉर्मूलाज भी आ जाते हैं। तो मल्टीपल डायमेंशन होने की वजह से ना यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, बट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि आपको प्रैक्टिकल भी बताया जाए, थोड़ा प्रोसेस भी बताया जाए, रूल्स भी बताया जाए, बराबर है, एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी बताए जाए। So we tried our level best. I hope the session was useful to you. किसी ने कहा है कि कल का पीपीटी नहीं मिला है, तो कल का पीपीटी और आज का पीपीटी दोनों मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं राजेश को इमीडिएटली शेयर करता हूँ एंड राजेश विल शेयर द सेम विथ यू। सो विद दिस वी आर थ्रू विद द सेशन। टुमारो का जो सेशन है, जो रिटर्न्स रिलेटेड सेशन है, इंक्लूडिंग द अदर एस्पेक्ट, जैसे रिटर्न में हमने क्या क्या चेक करना चाहिए वगैरह, दैट विल बी टेकन बाय माय कलीग सीए साहिल थरानी, who is very well conversant with this kind of topic. Additionally, he has taken numerous sessions regularly, उस टॉपिक पे उन्होंने बात किया, डिस्कस किया है। तो टुमारो या डे आफ्टर, मुझे लगता है टुमारो कल ही है ना टॉपिक राजेश, रिटर्न्स का। तो उस टॉपिक कल ही है मुझे लगता है। हाउ टू रिव्यू बुक्स ऑफ अकाउंट इज टुमारो। परफेक्ट। तो रिटर्न और वो दोनों क्लब कर लेंगे, वो पॉसिबल है, क्लब कर सकते हैं, तो दोनों क्लब करके सेशन ले लेंगे रिटर्न्स का। हाँ, रिटर्न्स का भी, ताकि जो हमने एक सेशन ओवरशूट किया वो उसमें कवर अप हो जाएगा कल, है ना? That will be fantastic. Yes, yes. Yes, perfect, perfect. Done then. So thank you all. Thanks Rajesh. Thank you all. Thanks just for participating. I want to share some facts to my friends. Yes, please. See, there are so many interpretation like associate enterprise, distinct entity, and remuneration received. See, there are so many interpretation with respect to the law and with respect to the department. Department is always trying to avoid your refund, and you should try to get it. Even in case of someone has asked for what about the cryptocurrency, leave it. It is definitely a illegal currency, but I just highlight you another point. One of my client has done an agreement in INR. Why INR? To avoid the fluctuation loss. To avoid the fluctuation loss, and they received amount in INR. Instead of FIRC, they received payment advice. Right, Preetham? मिला है कि नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। एक्चुअली क्या है, एक क्लाइंट है जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज के जगह INR में एग्रीमेंट किया है। INR में सर्विस प्रोवाइडेड टू USA, बट द एग्रीमेंट इज इन INR। हाँ, FIRC नहीं मिलता है उस केस में, वही पॉइंट है। उसमें पेमेंट एडवाइस मिलता है, वही उसमें पेमेंट एडवाइस मिलता है, क्योंकि पैसा यूएस के कंपनी के पास तो INR होते नहीं है, दे जस्ट पे इन फॉरेन करेंसी ओनली। मगर उन्होंने क्या करते हैं, जैसा मेरा अगर एग्रीमेंट 10 लाख रुपीस का हुआ है, रुपीस, तो उनको उतने डॉलर देने होते हैं जितने की वो 10 लाख रुपए हो जाए। यूजुअली कैसा होता है, वो डॉलर देते हैं और वो अपने को जितना ट्राई कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, मैं जो जिसने क्वेश्चन पूछा है ना, उसको मैं बता रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि दिस इज वेरी जेन्युइन ट्रांजैक्शन, दिस इज डेफिनेटली एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। हमको जो पैसा मिला है वो फॉरेन करेंसी में ही मिला है। खाली प्रॉब्लम क्या है, मेरे अकाउंट्स में आया है INR में, बराबर, मेरे अकाउंट्स में। तो डिपार्टमेंट इज ऑफ द व्यू के FIRC नहीं है ना आपके पास, तो हमको बाकी नहीं समझ में आता है कुछ। और एक क्लाइंट है जैसा पेयू है ना, पेयू वगैरह, बराबर, तो वैसे प्लेटफॉर्म से उसको पैसा आता है।
प्रॉब्लम क्वेरी सॉल्वर, मतलब मैथमेटिक्स के जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है ना, उनके कुछ क्वेरी सॉल्व करके देते हैं वो लोग. बराबर. तो ही रिसीव्ड कंसिडरेशन इन फॉरेन करेंसी. मतलब मैक्सिमम अदर कंट्रीज के ही स्टूडेंट उनके सर्विसेज लेते हैं, लोकल स्टूडेंट नहीं लेते. बराबर. तो उनको जो पैसा आता है फॉरेन करेंसी में आता है, मगर वो जो पेयू है या जो भी उनका प्लेटफॉर्म है जिससे उनको पैसा मिलता है, दे डोंट गिव एनी FIRC. ओके. वो क्या करते हैं, मंथ एंड में एक आपको एक्सेल का शीट देते हैं कि इतना पैसा आया, इतना हमारा चार्जेस है, ये नेट आपके अकाउंट पे ट्रांसफर हो गया ऑलरेडी. बराबर. They don't give any document. So in this case, how you will prove कि you have received consideration in foreign currency? The point is, there are so many practical difficulties while complying the provisions of law. Associate enterprise or distinct entity, Pritam has nicely elaborated कि there it should be restricted to the branch activity, and there is a specific case law also कि subsidiary is not a distinct entity. Still, state department is disallowing refunds on the basis of that provision. तो सर हाँ, कुछ कुछ केस में लेकिन ये कर रहे हैं. हाँ, चेतन का पॉइंट है कि what is export turnover? I have received consideration for the existing period, that is before June 2017. And if you received that consideration after 1st July 17, you will not receive the refund. This is not a case. Actually, that officer is not supporting or complying the provisions. जून के पहले का यहाँ पर राजेश, जून 2017 यानी कि सर्विस टैक्स रेजिम का अगर कुछ पैसा मिला है ना, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, यहाँ पर एक जो इंटरप्रिटेशन है जीरो रेटेड सप्लाई, तो वो ट्रांजैक्शन जीरो रेटेड सप्लाई में कवर ही नहीं होगा ना. I will not mention that turnover neither in 3B nor in my RFD 01. The point is that turnover cannot be a point of 01 or my GSTR 3B or GSTR 1, because that turnover I have already declared before June 17. Could be there is a issue in filing of refund claim. That not means that you can disallow my refund. See, there can be multiple interpretations. Everyone is not an expert in the law. 100 people will interpret in their way. So this is definitely, friends, there is a dispute recently that relevant period definition has been amended with effect from, I think, March or Feb. 1st March 2019. Correct. 1st March. Now the notification is not retrospective. Whether that notification is not, since this notification is not retrospective, till February, the definition is 2 years from the end of the year. Earlier definition of the relevant period is 2 years from the end of the year. Many my friend chartered accountants are filed refund claim for earlier period, that is 18-19, in March or April, considering the earlier definition of irrelevant date. But what department says that this notification is applicable for all the refund claims filed after 1st March. From what date it is applicable. What is their interpretation? That this notification is applicable for all the refund claims filed after 1st March 2019. What is our interpretation? That notification cannot be retrospective, and for 1st April 18 to 1st 30th Feb end, this period, refund should be considered for 2 years, from the end of the 2 years. Earlier definition of relevant period. So it is definitely officer interpretation is very important. So with this friend, I really enjoyed today's session of Pritam. I hope you all have really enjoyed. He has covered thoroughly. Definitely some slides I have seen first time, that India's map and all that I have seen first time.
export procedure also he has covered, how what happened at the customs port manifesto and all. Mostly करेक्ट, एंड इवन दिस रिलेवेंट पीरियड जो है ना, रिलेवेंट डेट का भी, तो हाँ. दैट इज आल्सो देयर, वो अनेक्चर में स्पेसिफिकली कवर्ड है, जो पीपीटी शेयर करेंगे ना उसमें स्पेसिफिकली कवर्ड है, तो आई थिंक दैट विल हाँ. बी आंसर्ड. हाँ, yes. So thank you participants from the bottom of my heart. If you have any query, you can text me or Preetham directly. No issue. We will try our best to resolve it. PPT Preetham has already communicated that he will share today both the PPTs. यस, Thank you friends. Thanks a lot for yes, thank you. joining. And कल Thanks. tomorrow Sahil is also here today, so Okay. Sahil will take care of the session tomorrow. Thanks a lot. Then Thank you, thank Preetham, you, from thank you. bottom of my heart, because you are accepted in a minute and helped me to draft also my structure. Thanks a lot. Thank you, it's pleasure. Okay. चलो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक Bye-bye.